but they have to work hard. Not a very large scoring in terms of how this has played throughout the tournament, but there is enough for the both sides. Shah Faisal was early on with the captains in the middle for the toss. Second game of the day of this Kingdom Valley National T20 Cup, and this one is coming to you between ATF Southern Punjab and Northern. I've got the two skippers, Salman Ali Agha, Umar Amin, and the match referee, Mr. Iftikhar Ahmed. Umar has got the coin. Give it a flip, buddy. Heads. Heads is a ball. Heads. And it is a tail. Northern has won the toss. Umar, क्या करेगा? Like to bat first, sir. और उमर आपकी टीम एक मैच जीती है अभी तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन टूर्नामेंट वाइड ओपन है, टीमें काफ़ी क्लोज हैं, तो क्या मोराल है आज कैंप में? वेल देखें, हम लोग तो आज इसी से आए हैं कि हमने जो गलतियां की हैं पिछले 3 मैचेस में, जो मैचेस हम हारे हैं बड़े क्लोज जाके हारे, तो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, कोशिश करेंगे कि इस मैच में वो गलतियां ना हो। वही मेरा अगला सवाल था कि आपकी टीम जो है वो काफ़ी क्लोज जा रही है, टीम मीटिंग में कोई एक बात जिस पे एम्फेसिस हुआ हो? वेल गेम सेंस वो जो मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि एप्लीकेशन जो आप लोगों की एज अ बैटिंग यूनिट एप्लीकेशन है, उसके बाद फिर हमने कुछ फील्डिंग में ऐसे एक्स्ट्राज हमने दिए, कुछ नो बॉल्स एक्स्ट्रा हो गई, कुछ फील्डिंग में हमारी लैप्सेस ऐसे हो गए जो छोटे छोटे एंड में हमें कॉस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस मैच में इस तरह के लैप्सेस ना हो। और कितना टोटल अच्छा होगा इस विकेट? जिस तरह पहला मैच हुआ है, पिच तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कोशिश करेंगे 170 180 लाजमी करें। चले उमर अमीन, थैंक यू, हैव अ गुड गेम। थैंक यू। सलमान, पिच आपने देखी, कैसे आप असेस कर रहे हैं टॉस को? आई थिंक पिच आज सबसे जो जितना भी टूर्नामेंट हुआ है मेरे ख्याल सबसे बेहतर लग रहा है, तो कोशिश करेंगे कि उनको जितना कम से कम में रिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद चेज़ करें आराम से। और आपकी टीम भी मिडल ऑफ द टेबल है, लेकिन टूर्नामेंट वाइड ओपन है, आप कैसे सिचुएशन को असेस करें टूर्नामेंट की? जी बिल्कुल, हम आई थिंक वी आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट, और कोशिश करेंगे कि उसी को कंटिन्यू करें और जो गलतियाँ पिछले मैच में हुई हैं उसको दोबारा दोहराएं ना और उनसे सीखें। टीम न्यूज़? वी हैव सेम टीम। Same team? Yeah. Challenge Salman, good luck, have a good game. Thank you. So the news from the center is that Northern has won the toss and they have decided to have a bat first. Northern looking to post a good total. They've got 2 changes. Nasir Nawaz comes back in place of Ali Imran, and good to see Zaman Khan. They've missed out Salman Irshad. I've got Ali with me. Now, unchanged ADF Southern Punjab, a very formidable side, very young side, and they're very similar in nature. These two sides, both are very young, energetic, good fielding sides. These two, a lot will depend on Salman Ali Agha, how he plays, because runs are due on him. Sharoon Siraj also in that looked very impressive. It's a very, very good side. These two very young sides, and the news is that Northern won the toss and they decided they're going to bat first. Rawalpindi railway station's one building to look at. Gorgeously built up. ATF Southern Punjab, they've got some momentum towards them, and again few losses, but overall they've looked a quite gel team. Yes, the big name Suhaib Maqsood has been missing out, bits and pieces, performances coming in, but Salman Ali Agha has led them really well. He's shown the intent. We've got the 2 umpires, Ale Haider, got Imtiaz Iqbal overlooking this game of cricket. It's going to be a good contest, I tell you that. Both want to win, both have the intention to win, Ali. Yeah, most definitely. Both very young sides. Salman Ali Agha, very young captain, captaining for the first time at this level. And it was very interesting to hear that both these captains are the batters. And at the toss they said, yes, pitch looks absolutely wonderful today for batting, because it is slow in nature, good for batting. Otherwise, we've seen some pace and bounce on these pitches here at Rawalpindi. But this pitch has something for the batters if you apply yourself. Slow in nature. And we saw in the first match, that was a terrific game of cricket between Sindh and Central Punjab. It was a nail-biter. And in the end, Central Punjab winning that game. So they've just learned from that it is a good pitch. It is a good batting pitch, I would call it. Salman Ali Agha and these two openers, the very promising Dishan Malik and Hassan, to start off the proceedings for Northern.
A lot of talk been going about Hassan Nawaz. Yes, he did had some crucial starts. Really couldn't capitalize on it. That's one area where he would like to work on. He's got the potential. He has the intention. Whenever he's out in the middle, he's looked like a composed, calm player, taking the ballers on. Ali Majid has the new ball. That's interesting. It's always something different when Salman Ali Agha is leading. Ali Majid has been really decent with the new ball. Never easy for a spinner. Yep, he's got the X factor in him, Ali Majid Shah, as just mentioned. He's got something in him. And on the other hand, it's equally good Hassan Nawaz. Just early days, 5th game, 96 runs, excellent strike rate of 124, a lot of promise. And on the other hand, it's Zishan Malik to his partner, 25 years of age, healthy strike rate of 120. Still early days for him. It's going to be Ali Majid Shah to start off the proceedings of very, very dangerous component with the new ball especially. It gets it in to the right-handers, and it would be very interesting to see him bowl to Hassan Nawaz. All set and ready for the first ball to be delivered. And just straying down the leg. The angle, he loved to bring it back in. Not much big turner of the ball. At times we have seen team-up deliveries as well. Yeah, sometimes I feel he just tries to bowl too fast, too quick, early on in his bowling spell. He can take his time, make his line and length, he can adjust with it, because he's a very dangerous campaigner, I tell you. That's good. Good length to hit on. No slip, just the regulation field. Or two fielders patrolling the boundary. Deep square leg and long on in position. Yeah, you got to treat him as a quick off spinner for a right-hander because the ball comes into him, although he bowls like a leg spinner. There's the shape you're talking about. At times it looks like a medium pacer to me, an in-swing medium pacer. Really hard to read off his hand. Hassan Nawaz, what a talent he has been from last few weeks that we have witnessed him. He's really expressed himself whenever he's been there in the middle. That's Apesh. But safe. Hassan Nawaz is a complete batter when you talk about just need to learn the art of creating, building an innings. No run there. Good bowling so far. Dots. Yeah, he's somebody who's always looking for runs, this youngster. And that is what you want to see from these young batters coming through the system. Just go out there, express themselves, show what you've made of, show your guts. And he's a very brave player, I tell you. He won't be shy away of hitting big sixes. Straight down the ground, good technique. If something about the new youngsters, they want to make a mark whenever they take on the field. Samula Niazi. A lot of notepads you'll see around with the coaches nowadays. Talking about the youngsters, Marina, what a wonderful talent we found in form of Samula Niazi. The way he finished the inning for Central Punjab, I think that is a very heartening sign for Pakistan cricket. If we can have a youngster who's brave, who can hit big at number 5 or 6, he used his long handle beautifully. Oh, bowled him, cleaned it up. Missed the length and the line as well. That's the first one for Ali Majid. And they're up and running. Yeah, that is not good cricket. Just missed it completely, Zishan Malik. That's what he should be expecting. You should be treating him like an off-spinner. And beaten all ends up. He had no clue whatsoever. This Zishan Malik losing his wicket. And that is a brilliant, brilliant start for Southern and Ali Majid Shah. Zishan Malik going without scoring any run. It's 2 for 1. जो तेरे साथ वाला होगा ना आप थोड़ा अंदर होगे तो अपने साथ वाले को उसको जरा अपने पास ही रखना ज़्यादा बाहर ना
The main goal will start proceedings from the media end. Nasir Nawaz walks in. First blow for Northern. Now making a comeback in this game. Was dropped in the previous game. And unfortunately, Ali Imran got unfit. And he's back in the side in place of him. He's got a very good strike rate though, but the average needs to go up a little because he's played 24 games, best of 42. That needs to improve too. Flip for Sameen Gul. Oh, wild chase outside off stump. The Nawaz, that's not usually what you associate. Have a look at that, Ali Majid. He was too late on it. Never picked the pace or the length. I don't know what he was doing watching from the other end. Gets on, comes in. Should have been on the front foot quite early. Yeah, that is poor. It's no rocket science. He's been around for this tournament, Ali Majid Shah. He's been around for a while now. Should be knowing that he's going to bring the ball into you. He'll skid the ball into you. Sameen Gul, a very good talent. 41 wickets, best of 3 for 20. Fielding has been really disciplined. ATF Southern Punjab. Everyone just tossing up, running, diving. That's what you would associate with them. Khan, the other game, he was exceptional with a run out and a blinder of a catch. These things can create difference when you've got a surface like this, easy to runs. Absolutely spot on. The way he ran Ahmed Shahzad out in the match against Central Punjab, I think that's where all the match changed after that run out. And it was this man, Hassan Khan. These youngsters, I tell you, they brought this new energy in National T20. That's lofted. Got a fielder. And he's missed it. I'm not sure if it traveled all the way, but this was a clear chance. And Faisal Akram, he has to do some justification for that. Why does this always happens to me? Why? Every time I say they've been brilliant with the field, we see a lapse. Have a look at that. Faisal Akram. It was always going away from him. It is a good effort. But at this level and the standards that we have seen in this tournament, we should have seen him take this catch. I reckon it was just the timing. Probably reacted a little bit late to it. Otherwise, it kept in air for a time. He could have managed it. Hassan Nawaz, he's not looking comfortable out. Playing on the move. Again lofted, another chance. Who's taking it? And alas, he is not going to drop those. Returning the favor. You gave me favor, I'll give you another catch. Another chance. Hassan Nawaz, the promising youngster, another failure for him. Hard length by Sameen Gul. Wanted to go big, just no footwork whatsoever. And he's not going to miss out these catches. He's having a time of his lifetime in this tournament with the bat, with the ball, and with the catches too. Brilliant catch to end the inning of Hassan Nawaz. It's 6 for 2. Come on. ATF Southern Punjab off to a flying start. Managed to bag 2 wickets, just on 6. Both openers gone. The captain walks in, Umar Amin. Well, he did mention at the toss that application, that's where they were having trouble, and I don't think the boys have learned. He's got a job to do for sure. He missed out in the previous 2 games. Now it's up to Nasir Nawaz and Umar Amin. Good length to hit. Sameen Gul has a decent pace. Got slip in a good channel, and have a look at that. Again, a wild swing. He was in no position to play that shot.
Hurried on too quickly, yes, but again, the shot selection for him in both the occasion was questionable. Yeah, he backs his talent though, but it's not gonna happen every day against quality bowling lineup. It might happen 1-2 days, but not every day. You cannot be consistent with. Bowling Shaji. Amin has a huge role to play. Two new batters on knots in the middle. He'll be a happy guy. Salman Ali Agha has led the side really well, rotating his bowlers at the right time. Oh, some confusion there. For Northern's sake, no problems. Be careful, be very careful when the ball goes to Hassan Khan, sorry. Same fielder, have a look at that. He's very quick. You can't really blame. I mean, the surface is decent, but it's Northern to be blamed, nothing else. Off the back foot, looking good shot. He'll take some chasing. The ball is traveling, but not to the boundary. Picked up couple. Umar Amin would like this pitch. It's not the usual that we have witnessed from the last 3 or 4 days. A little slow in nature. Nice footwork again. Rocketed onto the back foot and placed it right between the two fielders. Good looking shot, but really couldn't pierce the gap. Straight to the fielder. And was there in his own though. Just could not quite find the placement. Ali Majid Shah, it's such a huge luxury to have somebody like him opening the bowling. It's 2 of the over. 1 more delivery to go. Been exceptional in his 2 overs so far. Yeah, what he does is he hardly gives away runs. He hardly gives the room, and he gets wickets too early on. Such a huge luxury. Pushing for a hard single, but it has beaten the fielder. They'll manage to come back. 2 runs conceding. 10 for 2 after 3 Northern. So what do you think? What score Northern, after losing these 2 wickets, early wickets, they should be eyeing, because they have to revise that what they had planned earlier, and now they might have to revisit where they would have to end up, because this is a very good pitch. You need to get to that 170 mark, because we saw in the first game it was brilliant. Sarfaraz Ahmed almost pulled it off for Sindh. Where do you think they would be happier going from here on? Wild swing from Nasir. He's trying to force a shot. He's trying to dominate. Hasn't even middled a one. There's no use for that. You have to stay out there with your captain on the other end. Length has been impeccable from Amin Gul. And that's what Samin Gul is all about, the length. He's been beautiful with that. He's been around for a while in Pakistan domestic circuit. Used to play for KP, been transferred here to Southern. Well, that's how Northern play. That's their nature. They go after every delivery. You have to be smart about picking your bowlers and length. Not that easy of a surface. But this partnership, answering to your question, depends a lot. Missing everything. And so has Dishan behind. 4 runs. That's lucky runs coming Northern's way. I know you need all-rounders in your team, but some wicketkeeper as an all-rounder can cost you a lot. This is not the first time that we've seen ball going through Zishan Ashraf. That's right through him. That's not a good technique. Earlier against Sindh, Central Punjab's wicketkeeper Ikhlaq made a mess of few deliveries.
Somehow I've never been fan of makeshift wicketkeepers because this is a specialist job. Got to be a specialist behind the stumps. The mean goal cannot believe his luck. And I'm not sure what Nasir Nawaz is trying to do. Probably Umar should go and have a word. Again, it's within the stump. Good hard length. Swinging out of nowhere. Yeah, the better option, if you have to go after him, the better option is to go straight rather than going towards that mid-wicket or the corner. Just look to play straight. Just look on the up over that mid-off and mid-on fielder. That's the better choice. You have less risk and more chance of getting the bat on the ball. Look totally perplexed. This time finds a connection. Great. Coming back to what total they would be eyeing, probably right now it's the survival mode on. Umar Amin should have a word. You think so? The type of shots we're witnessing, is that what you call survival mode? I don't think so. Umar Amin, he needs to talk to him. It's two kind of survival at times. It's call it defense or you like to attack the bowler, enforce some shots. That's another survival. Offense is a type of defense. It's not working for Nasir. This time, oh, half chance. Ilyas did really well. Nerves for Northern. He's everywhere. Just a moment ago I saw him on point, and now he's at mid-on. He's everywhere. They want him everywhere. I wish they could have 11 Ilyases in their side. He's bowling well, he's playing at number 4, he's fielding well. And ATF Southern Punjab really wants more Ilyases in their team. Has looked totally different, more focused and composed since his comeback. In a pretty good shape, running hard, scoring runs with the bat. Fielding has been superb from him. One delight to have as a captain. 5 coming off the over so far. 4 byes, that's lucky runs. Quick single. Umar will get there safely. Single to close the over. Northern 16 for 2 after 4. ATF Southern Punjab, they'll be happy with the start. Openers for Northern back in the hut, just on 16. Nasir Nawaz looked really confused in the middle. Got few batting left, but again, nothing going their way. Ali Majid has been superb. Coming into his 3rd over, just given 6 runs and managed to get 1. Is there Ilyas again? At extra cover this time. I'm seeing him everywhere. Lightly shot, really couldn't find enough of it. Umar. Ali Majid has been superb. Yeah, the boy from Kabirwala, Ali Majid Shah, into the big boys. Look at that, Agha Salman, economy 4.6 in just 11 overs. Beautiful. Khalid Usman, very experienced, very talented. Yasir Shah there. And he's into the big boys, Ali Majid Shah. Economy of just 6.55. That's excellent. With the new ball within the power play. Splendid. Well ball, Shaji, well ball. An easy single there. That's more acceptable from Nasir Nawaz. Full face of the bat. Keep rotating the strike with your captain. You'll get some deliveries where you can capitalize. It's wonderful to see 3 leg spinners in that side. Yasir Shah and Usama Mir, I think he's been a revelation. What a comeback he's made. Well ball, Shaji, very well ball.
गुड पेस शाहजी A lot of teams have been focusing on how they can utilize the power play. Even earlier in the game, Qasim Akram did mention सिली बस it hasn't been the case, right? But probably teams should look beyond that, something to manage and get within the middle overs. Hasn't looked like that surface where you can come and time the ball at will. Absolutely. I think this is far better than the pitches that we have seen for batters, I tell you. Not that overall, but for batters. And if you can't do it here, probably you will struggle in the other pitches too. This is your best opportunity to get your form back. आगा Now they're saying there's a slight misfield, bit of trouble in the middle, and the vivid throw helped Northern. There wasn't any run out. 2 conceded. End of 5 overs. Northern is 22 for 2. दो विकेटें जल्दी गिर जाने के बाद अब एक पार्टनरशिप दरकार है और सही राह पर गामजन है इस वक्त उमर अमीन, हम कह सकते हैं जो आज बेहतर लग रहे हैं। नासिर नवाज को जरा सा पांव दबाने की जरूरत है क्योंकि अब एक ही ओवर बाकी रह गया है इस पावर प्ले में। बल्ला तो बहुत दफा घुमाया नासिर नवाज ने, लेकिन अच्छा कांटेक्ट हासिल नहीं कर सके। आउट ऑफ फॉर्म है इस सीजन में, ज्यादा टच में नजर नहीं आए। नेचुरल फ्री फ्लोइंग बैटर हैं। अच्छा ऑन ड्राइव किया लेकिन एक ही रन नासिर नवाज पा सकेंगे। इन आउट होते रहे नासिर नवाज, इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। कभी भी तसलसल के साथ हमने इनको खेलते हुए कम ही देखा है। हालांकि पूरा सीजन नॉर्दर्न की टीम का हिस्सा रहे, गुल क्लब का हिस्सा हैं ये दोनों जो क्रिकेटर हैं। यहाँ रावलपिंडी ये बड़ी फेमस क्रिकेट क्लब है, गुल क्लब। उमर अमीन और नासिर नवाज और हमारे साथी जो कमेंटेटर हैं ये भी गुल क्लब से हैं। क्या फैसल? काफी रिच हिस्ट्री है गुल क्रिकेट क्लब की रावलपिंडी के इस इलाके में। ऐसे उठाकर खेला, ये टॉप एज है। फाइन लेग फील्डर जो है पहुंचे और यहाँ पर 2 रन का और इजाफा हुआ। फाइन लेग से पहले दरअसल थर्ड मैन पर समीन गुल आ गए थे। उमर अमीन की आप बात कर रहे थे, काफी छोटी उम्र से उन्होंने क्लब क्रिकेट का आगाज किया। ये देखिए टाइम नहीं कर पाया, ज्यादा जोर से हिट लगाने की कोशिश की। हमने देखा है कि इस पिच पे आते साथ ही ज्यादा जोर से हिट यहाँ लगती नहीं है। नजदीक से जितना खेलेंगे उतनी ही बेहतर टाइमिंग मिलेगी। अब तक किसी भी टीम ने इतने कम रन्स जो हैं वो पावर प्ले में नहीं बनाए। आज बड़ा बाराबर रहा पावर प्ले का मरहला। सिंध और सेंट्रल पंजाब की टीमों के दरमियान ये मुकाबला हुआ। 57 रन्स स्कोर किए थे सेंट्रल पंजाब ने और 62 रन्स जवाब में सिंध ने बनाए। लेकिन नॉर्दर्न की टीम जो है वो 2 विकेटें गंवाने के बाद इस वक्त दीवार से लगी हुई है। ये अच्छा ड्राइव लेकिन रन एक ही मिलेगा और वो मिस फील्डिंग पर। रावलपिंडी की क्लब क्रिकेट की आप बात कर रहे थे तारिक, तो गुल क्रिकेट क्लब की काफ़ी खिदमात हैं। उमर अमीन का फ्लोइंग ड्राइव लेकिन गैप नहीं तलाश कर सके। पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन नदीम अब्बासी का ताल्लुक भी गुल क्रिकेट क्लब से था। मशहूर कोच सभी अजहर वो भी गुल क्लब से वाबस्ता रहे। यासिर अरफात भी गुल क्लब का हिस्सा रहे। यहाँ ये
वो जो एडीए का इलाका है, यहाँ जो पिंडी का जो पुराना एयरपोर्ट है, ये वहाँ पर गुल क्लब की टीम कभी क्रिकेट खेला करती थी। लेकिन यहाँ एक ही गेंद बाकी रह गई है और जो कम तरीन स्कोर है इस नेशनल T20 कप में पावर प्ले में वो 30 है। नॉर्दर्न की टीम क्या उसे पीछे छोड़ सकती है? उसके लिए एक चौका लगाना होगा उमर अमीन को। हिकमत अमली का फुकदान नजर आया है नॉर्दर्न में। पावर प्ले आप कंजर्वेटिवली खेल सकते हैं लेकिन विकेट आप ना गंवाएं। यहाँ इन्होंने रन्स भी नहीं बनाए और विकेटें भी गंवा दी हैं। इस बार उठाकर खेला, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया उमर अमीन ने और पावर प्ले में जो कम तरीन स्कोर की सुबकी सी उससे बचा लिया नॉर्दर्न को। बाउंड्री पर इस ओवर का इख्तिताम हुआ। देखिए एंगल को अच्छी तरह इस्तेमाल में लाए। ज़्यादा सीधा खेलना चाहते थे लेकिन लेंथ की वजह से बिल्कुल आखिरी लम्हे पर ड्रैग कर गए। लेकिन पावर प्ले है, काफ़ी बड़े बड़े गैप मौजूद हैं। फील्डर की पहुंच से दूर था ये स्ट्रोक। अच्छा इख्तिताम किया पावर प्ले का। 31 पर 2। उमर अमीन 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। उनके ऑपोजिट नंबर सलमान अली आगा जो बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में यहाँ पर खुद को मनवाए हुए हैं। एक मैच में 5 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ अंपायर आले हैदर ने इस बात की आप इजाज़त दे दी है इस इशारे के जरिए कि आप 5 फील्डर्स बाउंड्री पर भेज दें। सलमान अली आगा बैटिंग में खातिर खा नहीं कर सके। दरअसल कोई भी कप्तान जो है इस नेशनल T20 कप में वो बैटिंग में कुछ नहीं कर सका। तो ये बैट्समैन कप्तानों के लिए अच्छी चैंपियनशिप साबित नहीं हुई। इन दो कप्तानों के साथ आप सऊद शकील को देख लें, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा खातिर ख्वाह कंट्रीब्यूशन नहीं की। सेंट्रल के कासिम अकरम को भी आप इसी फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। लेकिन उमर अमीन अब सेट हो गए हैं और इनको यहाँ से अच्छी बैटिंग करना चाहिए। विकेट का अभाव वो जान चुके हैं, रन्स इसमें मौजूद हैं, ये हम देख चुके हैं आज दिन के पहले दोपहर। अच्छी बैटिंग पिच है, इसमें उतना ज्यादा स्टीप बाउंस नहीं है जितना पिछले दिनों देखने को मिल रहा था। बल्ले पर आती है, ये आम बॉल थी लेकिन स्टंप्स को छोड़ती हुई जाती। क्रीज पर स्टक हो गए एंगल के साथ, बॉल ने बिल्कुल उनको क्रैम्प कर दिया। अमीन भी चैंपियनशिप के पहले 2 मैचेस उन्होंने मिस किए। रिदम में आने में लगता है उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा है। हम सब जानते हैं कि इस लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत ही शानदार रही है और कंसिस्टेंट बैटर हैं। आज नॉर्दर्न को ज़रूरत है उनकी। ओवर द विकेट आ जाते हैं जैसे ही राइट हैंडर नासिर नवाज सामना करें, क्योंकि पिच में ज्यादा टर्न नहीं है। यहाँ पर टर्न कम हो, ऑफ स्पिनर जो है वो तरजीह देते हैं कि ओवर द विकेट राइट हैंडर को बॉलिंग करें और इस बार हवा दी बैट्समैन ने और ज्यादा हवा दे दी इस गेंद को। नासिर नवाज ने बिल आखिर अपना पहला छक्का लगा दिया जो उनकी पहचान है वाइट बॉल क्रिकेट में। जल्द ही उन्होंने लेंथ को पिक कर लिया और एरिया भी काफी दूर से वो खेले शॉट, क्योंकि तवील कामत हैं, अच्छी रीच है इनकी। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी लेकिन उनके लपेटे में आ गई और 6 रन। एतमाद मिलेगा नासिर नवाज को 7 ओवर्स के बाद 39 पर 2। लेफ्टी पहला रन तेज नासिर, पहला रन तेज, बॉल को नहीं देखना, ठीक है, आसान आ जाएगा ना। चाहिए दुक्का नहीं होएगा, शुरू दुक्का नहीं होएगा। आगे फैसल अकरम
अपनी लेग स्पिन बॉलिंग का जादू जगाने के लिए आए हैं। एक बार रीड कर लिया, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। और थर्ड में फैसल अकरम खासी कामयाबी मिली है। आज उसामा मीर ने अच्छा स्पेल किया था। एक और रिस्ट स्पिनर ने बड़ी कम उम्र में 19 साल की उम्र में ही ये खुद को मनवाने में कामयाब हुए हैं। देखिए अच्छा इकोनॉमी रेट भी। बलूचिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा स्ट्रोक उमर अमीन का बॉलर के सर के ऊपर से और 4 रन। बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की लेकिन टाइमिंग लाजवाब। यहाँ स्पिन पर कई बार अपनी धाक बिठा चुके हैं उमर अमीन और अगला कदम आगे बढ़ाया और अच्छी तरह पर वक्त मीट करने में कामयाब हुए। यहाँ दूसरा रन बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। फील्डिंग इतनी अच्छी की नहीं है। यहाँ पर समीन गुल फास्ट बॉलर जो है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थे और 1 रन तक उनको महदूद रखना चाहिए था। फैसल रिस्ट स्पिन एक मुश्किल आर्ट है और बहुत ही नौजवान हैं अभी फैसल अकरम, लेकिन अपने टेम्परामेंट से काफ़ी मुतासिर किया है। स्किल्स तो उनके पास जाहिर है कि वो हैं ही, के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी आएगी। लेकिन जो बलूचिस्तान के खिलाफ उनका स्पेल था, विकेट तो उन्होंने एक ही हासिल की लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल साबित हुआ। वहाँ साथ शफीक जैसे बैटर को उन्होंने मुसलसल परेशान किया और आउट भी किया। इससे उनको काफ़ी हौसला आया होगा कि इतने बड़े प्लेयर को आउट करना और उनके ऊपर हावी आना काफ़ी अच्छा तजर्बा हुआ होगा फैसल को। शाजी रोको सही, बहुत अच्छा शाजी। आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि जो पहले पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को शोहरत मिली थी, उस ज़माने में चाइना मैन गुगली बॉलर कहलाते थे। ऐसे बॉलर वो खालिद खोखर थे। असलम खोखर एक पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर गुजरे हैं, उनके साहबजादे थे। और यहाँ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की खासी पिटाई हो रही है और ये बाउंड्री को क्लियर कर गए। उमर अमीन ने जोर से बिल्कुल हिट नहीं की, टाइम किया गेंद को। तो ये वो शॉट है जो उन्होंने इस ओवर में शुरू में खेलने की कोशिश की थी। 50 रन भी मुकम्मल हुए नॉर्दर्न के और 8 ओवर्स भी। माजिद ने अच्छा स्पेल किया, 11 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। समीन गुल ने भी नई बॉल से उनका भरपूर साथ दिया। मिडल के ओवर्स हैं, नॉर्दर्न की टीम कम बैक करने की कोशिश कर रही है। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ फैसल अकरम का, 16 रन आए। इस विकेट पे खेलने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बिल्कुल बॉल को नीचे मीट करें और ज्यादा बाहर जाकर उसको ना खेलें। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है बिल्कुल नजरों के नीचे, इसी शॉट की तरह ज्यादा बेहतर टाइमिंग हासिल कर सकते हैं आप इस विकेट पर, जितना आप बॉल को करीब से खेलेंगे। अभी भी ऐसी हालत है नॉर्दर्न की कि मजीद 100 रन बना सकें। अच्छा फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस गेंद से पहले तक नासिर नवाज मिड विकेट को पार नहीं कर सके। अच्छा कैच लिया वहां पर हसन खान ने उछलते हुए, और सलमान अली आगा कि मुसलसल विकेटों में रहे, एक और कामयाबी उन्होंने हासिल की। ही नासिर नवाज के कैरियर का पैटर्न रहा है, स्टार्ट जरूर हासिल करते हैं लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल और अपनी इनिंग्स को तूल देने में एक मरतबा फिर नाकाम रहे। अपनी टीम को बीच मंझधार में छोड़ा, सिर्फ 13 रन बनाए। पार्टनरशिप का भी खात्मा हो गया 57 पे 3।
रोहेल नज़ीर जो विकेट कीपर हैं, गुज़श्ता मैच में उमर अमीन से पहले खेलने के लिए आए थे। आज 3 विकेटें गिरने पर इनको मौका मिला है। एक टेस्ट सेंचुरी जो उन्होंने बनाई हुई 56 नॉट आउट, ये फैसलाबाद में स्कोर की थी 2019 में। ये भी बिल्कुल नए नए थे। ये एक आदत सी अब हो गई है सलमान अली आगा को विकेटें लेने की। रन्स नहीं बन रहे लेकिन ऑलराउंडर हैं, विकेट लेकर अपना काम किए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के आखिर तक इनकी जो विकेटें हैं इनके रन से ज्यादा हो जाएं, जिस तरह क्रिस मार्टिन की थी उनके टेस्ट करियर में। पिछली 3 इनिंग्स में इनके 8 रन हैं और 9 विकेटें ली हैं, तो यकीनन अभी तक तो उनकी विकेटों की तादाद जो है वो रन से ज्यादा है। लेकिन यकीनन सलमान ये चाहेंगे नहीं कि टूर्नामेंट के आखिर तक यही सूरत हाल रहे। कामयाब ओवर का अख्तिताम 9 के बाद 61 पर 3। कैरियर इमरान रंधावा हैं नए बॉलर। छब्बीस विकेटें इमरान रंधावा पहले ही हासिल किए हुए हैं। इस इनिंग्स का 10वां ओवर वो करने के लिए आएंगे। अभी तक अच्छी पोजीशन है, विकेटें लेते गए हैं। अच्छा वक्त है बॉलिंग करने का, पार्टनरशिप अभी अभी टूटी है। हम बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा पिछली 3 इनिंग्स में इनके 8 रन हैं, 9 विकेटें हैं। क्रिस मार्टिन जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 71 टेस्ट मैच खेले। उनकी 233 विकेटें थी उनके टेस्ट करियर में और 123 रन से। और चंद्रशेखर जो लेग स्पिनर थे भारत के, उनके भी रन्स कम थे, विकेटें ज्यादा थी टेस्ट मैचों में। सोहेल तनवीर पिछले मैच में टॉप स्कोरर थे और जॉइंट मैन ऑफ द मैच भी थे। फिर लगता है कि जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी अभी, लेकिन उमर अमीन मौजूद हैं, ये एक अच्छा साइन है नॉर्दर्न के लिए। थोड़ा सा यस राइट। पहला रन तेजी से मुकम्मल किया लेकिन एक ही बनेगा। क्रिकेट दिलचस्प आदादो शुमार का खेल है। चंद्रशेखर भारत के जो फॉर्मर लेग स्पिनर थे, उनकी भी 242 विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में और 167 रन हैं। कम ही ऐसा देखने में मिलता है। सलमान एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पे अपने आप को मनवाना चाहेंगे, इसलिए वो जल्दी स्टैट से छुटकारा हासिल करना चाहेंगे। पीछे हटे और मिस फील्डिंग कर बैठे। ये यकीनी रन आउट कर सकते थे सलमान अली आगा। ये विकेट जो है वो जाहिर है कि इनको नहीं मिलती, लेकिन इनकी टीम को जरूर मिल जाती। पीछे हटे थे और बिल्कुल सीधा खेलकर ये दौड़े हाथों में। एक और गलती साधारण की जानिब से। फील्डिंग का म्यार कितना बुलंद था, पहले 3 से 4 दिनों तक इतने आला कैचेस
हमने देखे सब वाश कर रहे थे, लेकिन ज्यों ज्यों टूर्नामेंट आगे बढ़ा है मैचेस गिरने लगे हैं, फंबल्स ज़्यादा हो रहे हैं। क्या उसकी वजह ये है कि बैक टू बैक मैचेस हैं सीज़न के आगाज़ में ही, मौसम भी जो है वो काफ़ी गर्म है, खिलाड़ियों की फिटनेस तो फिर बड़ी आजमाइश आई है इन मैचेस में, और शायद इसी वजह से फील्डिंग पर भी असर पड़ा है। फिर रेगुलेशन फील्ड है रंधावा के लिए, 3 स्वीपर्स हैं ऑन साइड पर बाएं हाथ से खेलने वाले उमर अमीन के लिए। हालांकि इससे अच्छी आउटफील्ड हो नहीं सकती, फील्डिंग करने के लिए, डाइव स्लाइड करने के लिए। अच्छा शॉट और एक ही रन आखिर में हासिल कर सके शारून बर वक्त गेंद पर लपके। तो इस ओवर में इमरान रंधावा ने खामोश रखा, पिछले दोनों ही ओवर्स खामोश गुजरे हैं नॉर्दर्न के लिए, जिनने बनाए 3 विकेट पर 66। वेल बॉल आ गया यार, वेल बॉल। 67 for 3, halfway stage for Northern. And they've decided to bat first, so they should be having a clear idea of where they want to end at the end of the 20th. They've lost some quick wickets earlier on, but they've done some repair. वेल बॉल आ गया। But they don't bat deep, mind you. After this, you'll have Suhail Tanveer and Mubassir coming in. Mubassir is a bat, of course, but yeah, they need to bat till 15 at least, these two. Good shot. Just attacking the extra cover region. Those are the safe boundaries you'd want to get and add on to the scoreboard. Our captain taking the responsibility now. He's due some runs. It's coming at the right time for Northern. Inside out. Nicely timed. An important boundary for Umar Amin. Two is the call, and they come back easily. Good running there. That's good cricket. Putting the pressure on young Sharoon. Earlier said that this is the sort of pitch where Umar Amin would like batting. Slow in nature, and the sort of player he is definitely going to like it, and he's proving it. 44 of 32 at the moment. Yeah, we're talking about the options, batting options for Northern. Suhail Tanveer, he's into runs. In very good batting form he is in. Oh, he's lucky. Inside edge. 11 gone, 75 for 3. Early wickets, both openers going cheaply. Nasir Nawaz took 17 deliveries for his 13. Umar Amin is the man. They'll all be looking forward to get this inning through, and Royal Nazir with him. Amir Jamal can bat, so can Mubassir, and definitely Suhail Tanveer. Imran Randhawa is going to continue in his second over. Against ATF Southern Punjab. Northern 75 for 3. Where can they take the game from here? The foundation is there. The base has been set. Need to just understand how to play around this. Yesterday Balochistan didn't hurry things. Even today, we watched the first game, Central Punjab.
Some sensible batting there from Shoaib Malik. Some brilliant knock earlier on from Faizan. Helped them to get to 188 when the captain was looking at 160 at toss. Only because of that start that they got. Then someone like Shoaib who could just keep that run rate going at a consistent rate. Again, catch it is the call, and gone. Oh, that's a brilliant catch on the second attempt. You can't attack Ilyas. He's too good. Yeah, it has to be Ilyas. That is his 6th catch of the tournament, and another blinder. Another excellent catch at the boundary line. He can do no wrong in this tournament. He's getting runs, he's bowling well, and he's catching brilliantly. He's the difference apart in this southern side. Wonderful athlete he is. He's not sure, but the soft signal is out. They need to check it again. Rohil Nazir wanted to go up over that cover fielder. Could only find Ilyas. Have a look at that for a catch. He knew it was going over him. Just gets it amazingly on that second attempt, and the balance. That's very important. He knew that the force would carry him to the boundary, but just good strong legs. Complete breaks from 100 to 0 in no time. Yeah, he's pretty much 4 to 5 inches away from the rope. Just having an official look at the moment, and the decision is now going to come about. Out. Out. Brilliantly caught by Ilyas. Rohil Nazir could only manage 6 runs. It's 76 for 4. The new batsman out there with a lot of makeup. Mubassir. It is quite... It's not that hot, but the sun is very sharp. Rebuild a partnership now. That's what you got to do when you lose a wicket. Umar Amin will be key. He has to bat 20 overs for sure. Nothing doing. Yeah, I can look at this all day long. This amazing effort from Ilyas got stuck in his left hand. Presence of mind shown because he was not far away from the boundary line up. Disappointment, yes, surely. It did come a bit from the middle of the bat. It has to go to Ilyas. He's taken 6 catches, Ilyas, in this tournament. They've all been brilliant. First day he took a blinder, the same position he's at the moment. Scoring runs. He's been promoted at number 3 or 4 also. It's all working for him at the moment. He did everything, Rohil Nazir, to play that shot over cover. It's not easy to get a maximum there. Just 2 runs up till now and a wicket in the over. A good spell going on for Imran Randhawa. Dot ball, 2 and a wicket. 12 gone, 77 for 4.
Salman Ali Agha will continue. Another splendid spell of bowling. 3 overs for just 23 runs, 1 wicket to his name. Took 5 wickets in his previous game. Although he's not been scoring runs with the bat as Southern would expect from him. But he's doing a great job as an off-spinner. He's got best figures by any Pakistan captain, any captain in Pakistan rather. 5 for 10 in his 4 overs. Nice pickup. Just around the leg stump. On him, a boundary. Mubassir gets off the mark. And that was an easy picking. Onto his leg stump. Yep. Easily picked up. No fielder there. A good start from Mubassir. Big shot. And just lands between the two. 1 bounce 4. Just pressing that pedal a bit here at the moment against Salman Ali Agha. It's probably the over they want to go after. Yeah, one of them had to go. And Mubassir decided it's going to be him to go after the bowling. And Umar Amin is probably the one who's going to play along till the end. It's a good effort. Chance of a run out, directed, it could be out. Oh, it hits the batsman on the way. Yeah, just correction. Salman is the only captain in Pakistan to have the figures of 3 overs, 5 for 10. In central Punjab. Slight hiccup in taking that single, and that's what the worry was, that if the striker is going to make it in time, the throw hits the batter on the way. That's Umar Amin taking a chance of Hassan Khan. That's a brave move. How well Umar Amin has played in this inning. A proper captain's inning. He's due some runs, and we all know that he's so stylish. When he gets going, it looks very good, and he's very effective. Scores runs. He can attack. 11 of the over. After 13, it's 88 for 4. A wicket for Ali Majid, Samin Gul, Salman Ali Agha and Imran Nandawa. Ilyas got 9 of the first over that he gave away. Umar Amin is on 49 of 38, the captain. He's got half Northern score at the moment, who are 88. Actually, more than a half. And there you go. Quick single, and he gets a 50. 21st 50 in T20s and 9th at Rawalpindi. Umar Amin, the captain. Yeah, welcome back. Umar Amin, the captain of Northern. He was short of some runs, and this is a good time. Good inning. 53 fours and a 6, a healthy strike rate of 128. At a time when Ali Imran, their ace batter, got unfit, he had to step up, and he's done a good job. The good thing is that he's always looking to play straight. Oh, that's a wild scream rather than an appeal.
think you can scare the umpire and get a decision? No, it won't happen. Yeah, sometimes the appeals are effective when they're loud. But nowadays in international cricket, when you got all those reviews, it's different. But at this level, yeah, you never know. Excessive appealing can get you into trouble as well. Played it hard into the ground, into the pitch. Dealing in singles, Ali, that is going to be a bit tough. They'll have to really punch that accelerator and press on it in the last 5 then. So Tanveer is all set and ready, padded up, gloves on, helmet on his lap, I'm pretty sure. Well, they should be looking to get at least 160 runs from here on. So Tanveer is in a tremendous touch. And if they can get to that 160 mark, we all know that Southern Punjab is a very young batting side. And Salman Ali Agha, the experience, the captain is not in good touch, struggling to get runs. Zishan Ashraf also struggling. So if they can get to that 160 mark, that will make things very interesting. Part-time wicket keepers, we just saw Zishan. Who would you rate better than the other, him or Akhlaq? As a keeper, I'm saying. That's a tough one. That's a tough one. Yeah, just a little, maybe 1%, I'll give it to Zishan Ashraf. Where did that come off from? That's gone for 4. It raced away from the shoulder of the bat, I think. Wanted to punch it off the back foot. Young Mubassir. Yeah. So that's a good boundary. Needed boundary. It's 97 for 4. Yeah, you were talking about the makeshift wicketkeepers. Somehow I've never liked this idea, because this wicketkeeping is such a specialist job. It's such an important member of the team, wicketkeeper is. We saw in the previous match, Akhlaq just made a massive few deliveries. They should have gotten those 2 wickets. And here also, Zishan Ashraf, a few boundaries given by him. They don't really care about us. What we think. Gone. Ali Majid, if you've played him or watched him, he's giddy. And he's got pace. Don't mistake him for a regular spinner. And he's got Omar Amin. I think he's got a big chunk out of Northern just now. Again, that cross-batted shot. How many times you have seen that? And for somebody like Omar Amin, who's been in for a bit now, losing his wicket on 52 and not the right choice of shot, was bowled by Ali Majid Shah. It's 97 for 5.
The man in form, Sohail Tanveer. Got a brilliant inning yesterday, 72 runs, almost saw his team home. And that's how Umar Amin lost his wicket, halfway there. Probably it was there to be hit, but kept a little low. Lost his wicket, and as you said, you must remember when Ali Majid Shah is bowling, he skids on, the ball hurries on to you. That's what happened with Umar Amin. You notice Ali Majid, he has the ball in his right hand, shifts it to his left, and then again to his bowling arm. So there are two swaps in that short run-up. That's his bowling arm. Goes to the, well, we missed that. Should be missing that fielder. Ahmed will give a chase, but will lose it. And 100 up for Northern with 103 now for 5. That's experience for you, Sohail Tanveer. Quick full toss, that's sensible, very good cricket. Realizing the fielder is inside the circle, all he had to do was put the bat on the ball and earn a boundary for himself. This time it's on the other side. That will get him another boundary. Sohail Tanveer, a good start for him. 2 boundaries in 2 deliveries for him. You have to treat him like a medium pacer when you're fielding fine leg, short third man. You get those edges, the ball will travel. He's got pace. He's put so much pace on the ball. Look at that. It comes fuller. Just have to put bat onto it. Will they come back for 2? No, they won't. Sohail Tanveer is not out 9. 10 in fact. 108 for 5. अली माजिद ने अपना कोटा मुकम्मल किया। इमरान रंधावा के अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। समीन गुल और मोहम्मद इलियास के भी 2 ओवर्स बाकी हैं। ये मुमकिन है कि समीन गुल और मोहम्मद इलियास जो हैं ये बाकी मानता 4 ओवर्स वो करने के लिए आए। सोहेल तनवीर अच्छे बैटिंग टच में रहे हैं। सोहेल ये जो पार्टनर हैं मुबस्सिर, देखना ये कि वो उमर अमीन के आउट होने के बाद क्या कर सकते हैं। पुल करने की कोशिश की लेकिन लेंथ मिली नहीं। और देखिए क्या ये सेंड ऑफ था। उमर अमीन जाने से पहले वो निशान छोड़कर गए और यहाँ पर इमरान रंधावा निशान छोड़ने के बहुत करीब आ गए थे। ये मुबस्सिर के साथ मसला है, ज़्यादा जारहाना बैटिंग वो कर नहीं सकते। टिपिकल फर्स्ट क्लास बैट्समैन है, ऑन द ऑफ खेलने के लिए गए। हिकमत अमली बहुत आसान होनी चाहिए। सिंगल लें, सोहेल तनवीर को स्ट्राइक पे लाएं। उन्होंने बहुत जारहाना बैटिंग की थी पिछले मैच में। अभी भी ये मौका ऐसा है कि उन्हें हिट करने जाना ही नहीं चाहिए। 15 पे खेल रहे हैं। फाइन लगे ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। ये ज्यादा बेहतर सोच थी जो मुबस्सिर ने अपनाई। फाइन लग गए, फील्डर समीन गुल को दायरे के अंदर पाया और इस गेंद को स्कूप कर दिया। ये इनकी खासियत है, बिहाइंड स्क्वायर रन्स बना लेते हैं। बाउंड्री ज़्यादातर यहीं पे लेते हैं, सामने बड़ी शॉट्स नहीं मार पाते। इम्प्रोवाइजेशन इनकी अच्छी है। यहाँ पे डॉट बॉल्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा नॉर्दर्न को अगर एक अच्छा हदफ पोस्ट करना चाहते हैं।
अच्छी नज़र दिखाई इस बार। गेंद बहुत ज़्यादा आगे नहीं थी, लेंस से ही इसे उठा खेला। अभी भी मिड ऑफ और इलियास दायरे में, एक्स्ट्रा कवर पर शारून भी, और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑन, दौड़े दौड़े आए लेकिन रोकने से कासिर रहे। दो मुतवातिर चौके लगाए मुबस्सिर ने, एक विकेट के पीछे एक बिल्कुल सामने। मोमेंटम रीगेन किया है नॉर्दर्न ने इन बाउंड्रीज की बदौलत। अच्छी जो बाउंड्रीज मिल गई, लेंथ करा दी थी और थ्रू द लाइन खेली है मुबस्सिर ने। ये एक अच्छी बाउंड्री हासिल हुई है। रंधावा थोड़ा सा मिक्सअप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लेंथ जो है वो, अगर पेस ऑफ आप रखते भी हैं तो ये लेंथ ज़्यादा साजगार नहीं है। फिर लेंथ मिल गई थी लेकिन पुल कर नहीं सके। आज उमर अमीन ने इस इनिंग्स को संभाला दिया। पहली 2 विकेटें 6 रन पर ही गिर गई थी, और उसके बाद मिस सेंचुरी बनाई कप्तान ने, और अब अच्छा खत्म करना है। अगर ये यहाँ से 100, 155, 160 की तरफ चले जाते हैं। इस सोहेल तनवीर लेग साइड में शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इससे 3 फील्डर्स बिल्कुल बाउंड्री पर लगे हुए हैं, और फाइन लेग के ऊपर से इस बार निकाल दिया। अली ने जाकर गेंद को रोका। 2 रन बमुश्किल सोहेल तनवीर बना सके। कोशिश ये होगी इमरान रंधावा की कि इनको आगे ना गेंद कराया जाए, सीधा भी अच्छा मार लेते हैं। कल कवर ड्राइव्स भी इनकी अच्छी देखी जो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद मिला। 16 ओवर के इख्तिताम पे नॉर्दर्न 120 पे 4, 5। ये चेंज ग्लव्स चेंज बैट्समैन। सोहेल तनवीर मैन ऑफ द मैच करार पाए थे पिछले मैच में, और उसकी बड़ी वजह उनकी बैटिंग थी। 74 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली थी। यहाँ अगर वो एक कैमियो खेल जाते हैं तो नॉर्दर्न मुकाबला करने की पोजीशन में रहेगी। पिछले मैच में हालांकि इनकी जो बॉलिंग थी उसने भी अपनी टीम को सरनिगो किया। समीन गुल आज बड़ा शानदार आगाज किया इन्होंने नई गेंद के साथ। ये परस्तार मुस्तकिल हैं सोहेल तनवीर के। लगता है कि ये उनकी, ये जो इंग्लैंड में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता था, ये उसी की तस्वीर है। मिड ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर थे, इसलिए ऑन द ऑफ खेलने में कामयाब हुए, और दिल का शौका लगाया। मुबस्सिर खान ने अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, रवानी पाली है उन्होंने अपनी इनिंग्स में। अच्छी इंटेंशन है ये। एक बार फिर समीन गुल ने भी इस बार लेंथ दे दी थी, सीधा उठाना चाह रहे थे लेकिन बैट एंगल हुआ और फील्डर अंदर मौजूद था, इसलिए रिस्क लेना जायज था इनके लिए। पहली गेंद पे बाउंड्री आ गई, अब इसको कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी होगा। अपने 28 रन में मुबस्सिर ने 6 चौके लगा दिए हैं। बहुत ज्यादा दौड़ने के मूड में नहीं है, जानते हैं कि सोहेल तनवीर उनके साथ हैं। बेहतर यही होगा कि बाउंड्रीज लगाएं। अब दबाव में होंगे समीन गुल पहली गेंद पर 4 रन देने के बाद, और शानदार शॉट और शानदार नतीजा भी, और गेंद गई सोहेल तनवीर स्टैंड में। समीन गुल सीखने को बिल्कुल भी नहीं तैयार। ये लेंथ इस टाइम पे डेथ ओवर्स में देना जो है वो जुर्म से कम नहीं है। बिल्कुल पाले में दे दी थी, खड़े होके खेला इन्होंने, बहुत टाइम मिल गया था। अच्छी एलिवेशन और शानदार शॉट, ये मुबस्सिर की एक्सेलरेट करते जा रहे हैं अब नॉर्दर्न। या लेग कटर या, क्योंकि बाउंस खासा ट्रू है, गेंद रुक कर नहीं आई। मुबस्सिर खान जो आज अच्छे टच में लग रहे हैं, उन्होंने इस तरफ का जो इलाका है, ये बाउंड्री का फासला भी निस्बतन कम है, क्योंकि स्क्वायर के दाएं जाने वाली जो
पिचेस हैं उन्हीं में से आज एक को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेग साइड की बाउंड्री का फासला पिच से निस्बतन कम है, इसलिए अगर आप शॉर्ट गेंद कराएंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है फास्ट बॉलर को राइट हैंडर के खिलाफ। लेकिन इस बार शॉर्ट गेंद को ऑफ साइड में खेला और कैच आउट का ये मौका था, बहुत ही उम्दा कैच लिया ये नौजवान फैसल अकरम है। गेंद जिन पर उनसे दूर भी थी और नीचे भी आखिर में रह गई, लेकिन अच्छा डाइव करके उनने इसे संभाला और डेंजर मैन मुबस्सर को चलता किया। दाद देनी पड़ेगी सलमान अली आगा को और समीन गुल को, दोनों ने ये थर्ड मैन का फील्डर पीछे भेजा था इस गेंद से पहले और प्लान यही था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप एक शॉर्ट पिच डिलीवरी अटेम्प्ट की जाए और अपनी शेप बिल्कुल खो बैठे मुबस्सिर। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, वाइस कुछ चेक करना चाह रहे हैं, या तो पहले नो बॉल चेक करेंगे और फिर ये कि क्लीन कैच था, यानी एफर्ट बहुत अच्छी थी और पहली नज़र में देखें तो लग रहा था कि क्लीन कैच है। यहाँ पे कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा समीन गुल को। यहाँ इससे मुबस्सर को जाना पड़ेगा और ये क्लीन कैच तो था, इसमें तो कोई शुबा नहीं। ये देखिए पूरी तरह कंट्रोल में थे और कोनियां लगने के बाद भी गेंद उनके हाथों में ही रही। इस तरह टीवी अंपायर ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है नासिर हुसैन ने कि मुबस्सिर खान को जाना होगा और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, 188 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया मुबस्सिर ने, 130 पर 6। समीन गुल, आमिर जमाल नए आने वाले बैट्समैन हैं, लेकिन सुहेल तनवीर फिलहाल स्ट्राइकर होंगे। बहुत अच्छा बाउंसर, लेकिन क्लियर कर गए सुहेल तनवीर विकेट कीपर को और साथ साथ अब फाइन लेग के फील्डर भी नहीं इसे रोक सके। 4 रन्स कुछ नसीबी के मिल गए। लेग साइड में खेलने के लिए गए थे सुहेल तनवीर, गेंद उनके कंधे के ऊपर से तेज जा रही थी। ऑफ स्टंप की लाइन थी ये और अच्छा वेल डायरेक्टेड बाउंसर था। इस बार थोड़े से अनलकी जरूर है समीन गुल, चौके के लिए चली गई गेंद वरना सरप्राइज कर दिया था सुहेल तनवीर को। समीन गुल ने अपने पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए थे, लेकिन यहाँ उन्हें 14 रन दे दिए 4 गेंदों में। से कहते हैं कि क्रिकेट जो है ये गेम ऑफ ग्रेट लेवलर, यहाँ बराबरी होते हुए ज्यादा वक्त लगता नहीं है। और सुहेल तनवीर जो हैं यहाँ कैच आउट हो जाएंगे क्योंकि फील्डर तैयार थे, गो के सूरज आंखों में आ रहा था, लेकिन मोहम्मद शहजाद ने कोई गलती नहीं की और इस तरह सुहेल तनवीर कैमियो खेलने के बाद वापस चल दिए, 2 विकेटें हासिल कर ली। शॉर्ट गेंद जो है वो काम कर गई समीन गुल के लिए। अच्छी लेंथ से उठा रहे हैं और अच्छी पेस से भी कर रहे हैं, मिक्सअप भी अच्छा कर रहे हैं समीन गुल। 2 सेट बैटर्स नॉर्दर्न के वापस पवेलियन जा चुके हैं। देखिए नॉर्मली अगर ये हल्का रहता, थोड़ा सा वेस्ट से नीचे रहता ये तो ये बाउंड्री के पार जाना था, लेकिन अच्छी पेस के साथ किया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एलिवेशन नहीं मिली, इसका इनको अफसोस है। नॉर्दर्न एक बार फिर बैकफुट पे आ गया, अच्छी इनिंग्स खेली, 17 रन की, 134 पे 7 नॉर्दर्न। एक और लेफ्ट हैंडर आए हैं सुहेल तनवीर की जगह पर, मेहरान मुमताज, जो अभी तक बैटिंग में कोई करिश्माती
झलक दिखा नहीं सके। इनके बारे में बताया गया है कि ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इस ओवर में रन जरूर गए लेकिन 2 विकेटें भी हासिल की समीन गुल ने। देखिए हार्ड लेंथ को उन्होंने हिट किया। सुहेल तनवीर ने यहाँ पर मोहम्मद शहजाद के हाथों में हिट किया, मिडल कर नहीं सके। बल्ले को दोष देते हुए जा रहे हैं सुहेल तनवीर। वापस इस डगआउट में 134, 7 खिलाड़ी आउट। आसमान आज बिल्कुल नीला और साफ है, लेकिन ये नॉर्दर्न की जो बैटिंग है इस पे मतलब कोई इतना साफ नहीं है। उमर अमीन ने निस सेंचुरी बनाई लेकिन उनसे पहले सिर्फ नासिर नवाज और उनके बाद मुबस्सिर खान डबल फिगर में आ सके। सुहेल तनवीर अभी अभी आउट हुए हैं, सेट होकर खेल रहे थे। दरअसल यही कहानी रही है। अली इमरान की कमी महसूस की नॉर्दर्न ने, जख्मी होने की वजह से दस्तयाब नहीं थे। आमिर जमाल ये बाउंड्रीज लगाने के रस्सियां हैं, क्या इस इनिंग्स को अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? अभी भी 17 गेंदें मयस्सर हैं और ये अच्छा शॉट खेला। स्क्वायर लेग फील्डर देखते रह गए और इस शानदार पुल शॉट के जरिए अपनी इनिंग्स का आगाज किया। बैट स्पीड आला थी आमिर की। लेंथ दे दी थी मोहम्मद इलियास ने और आमिर जमाल ने वहीं से आगाज किया जहां कल मैच छोड़ा था। बहुत अच्छा बैलेंस क्रीज पे रखा, तेज हाथों के साथ ये कनेक्ट की शॉट। इनकी अच्छी शराकत रही थी सुहेल तनवीर के साथ, बड़ी हिट मारने में बिल्कुल ये चीज की सलाहियत रखते हैं। यहाँ अगर 160 165 तक नॉर्दर्न पहुंच जाता है तो मुतमिन होगा। इस बार अपनी लेंथ तब्दील किया लेकिन यहाँ पर ओवर रन कर बैठे मिड विकेट के फील्डर। संगीन गलती की जिसके सबब 4 रन आमिर यमीन को मिले। नॉर्दर्न का स्कोर अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए पिछली गेंद शॉट थी, उसी की तलाफी करने के लिए गए और ये गलती की शहजाद ने। कुछ ही देर पहले उन्होंने अच्छा कैच लिया था। ये लैप्सेस इस तरह के जो हैं वो आप फील्ड में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये रेगुलेशन फील्डिंग्स हैं। ओवर रन कर गए थे इस बार और बाउंड्री दे दी। गेंद यॉर्कर की तलाश में थे लेकिन गेंद वैसे बाउंड्री वाला ही था। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी ये इलियास कम करते हैं, इसलिए ये तजुर्बा ज्यादा कामयाब रहा भी नहीं। अंपायर को वाइड का इशारा करना पड़ा। चेंजअप अच्छा है ये, लेकिन वही एक्सिक्यूशन कहाँ पे फिनिश हो रहा है गेंद, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर पेस ऑफ रखते हैं तो लेंथ बहुत मैटर करती है और लाइन भी। आमिर जमाल जहराना शॉटें मारने की बिल्कुल सलाहियत रखते हैं। 2 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं। कोशिश होगी कि इस ओवर को ज़्यादा कैपिटलाइज किया जाए। ये अच्छा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर कट ऑफ नहीं कर सके। बड़ा तेज ड्राइव किया आमिर यामीन ने, जो बाउंड्रीज दाएं बाएं से हासिल करते जा रहे हैं। इलियास उनके सामने बेबस दिखाई देते हैं। फिर यॉक करने की कोशिश की लेकिन ये भी पाले में आ गई आमिर के। दिलकश ड्राइव थी ये, एक पुरएतमाद बैटर की तरह बैटिंग कर रहे हैं आमिर जमाल। ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन शॉट बहुत अच्छी थी, वेट ट्रांसफ़र अच्छा था और कुछ जवाब ढूंढना पड़ेगा ATF सदर्न पंजाब को। ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। विकेट के दोनों जानिब बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद इलियास, और इलियास दरअसल खुद इस तरह की बैटिंग भी कर रहे हैं आजकल जैसी आमिर जमाल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं मोहम्मद इलियास। स्क्वायर लेग को वो आगे ले आए, पॉइंट के फील्डर को बाउंड्री पर भेज दिया गया। इस वक्त 2 फील्डर स्क्वायर के पीछे हैं ऑफ साइड में, इसलिए वाइड यॉर्कर अटेम्प्ट किया।
आप क्योंकि पिच रिपोर्टिंग के लिए मरीना जाती रही हैं, ये अच्छा स्कोर लग रहा है। नॉर्दर्न की टीम को मजीद कितने रन बनाना चाहिए कि उनके बॉलर्स को मौका मिले? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर 165 तक भी ये पहुंच जाते हैं तो इनके पास ऐसी बॉलिंग है, लेकिन बॉलिंग में एक्सिक्यूशन बहुत ज़रूरी होगी। आज एक्स्ट्राज नहीं अफोर्ड कर सकते। ये देखिए, क्लोज कॉल थी, लाइन के अंदर था। अच्छा वाइड यॉर्कर किया इलियास ने। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर यहां पर एक दूसरे की तरफ उनने पहले देखा और बहुत ज्यादा कोशिश नजर आई नहीं। मोहम्मद इलियास जो हैं, ये दरअसल उनकी इस मुस्कान में मायूसी भी थी, क्योंकि बिल्कुल अपनी बालादस्ती जाहिर कर दी है। अच्छा स्कोर ड्राइव करने में कामयाब हुए और ये रन्स ये सताएंगे। सदर्न पंजाब की टीम जो है, एक ही बार उनकी दूसरी बैटिंग आई है रन चेज में। वो सिंध के खिलाफ 148 भी नहीं बना सके थे, बाकी मुकाबलों में उन्होंने पहले ही बैटिंग की। तो ये एक ऐसा सफर है जिस पर वो निकले नहीं है अभी कामयाबी से इस टूर्नामेंट में। ये रन बहुत महंगे पड़ सकते हैं। फील्ड फिर दोबारा चेंज कर रहे हैं, प्लान चेंज है। अभी फिलहाल कुछ भी काम नहीं कर रहा मोहम्मद इलियास के लिए। पॉइंट वापस सर्कल में आ गया और स्क्वायर लेग को वापस बाउंड्री पे भेज दिया गया है। विद इन विकेट्स रखना चाहेंगे, लेंथ बहुत जरूरी है। इस बार फिर बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी और गेंद सामने साइड स्क्रीन के। एक और फलक शिगाफ छक्का। मोहम्मद इलियास 25 रन दिए जाते हैं। इस ओवर का आगाज छक्के से हुआ, इख्तिताम भी छक्के पर हुआ। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी फेंकी। आड़े हाथों ले रहे हैं आमिर जमाल। जल्दी रीड कर लिया था स्लोअर डिलीवरी को। आउटसाइड ऑफ स्टंप था। एक बार फिर अपने बाजू खोलने का इन्हें मौका मिला। 150 ऊपर हो चुका है और ये एक शानदार कैमियो खेल रहे हैं आमिर जमाल। ये अब नॉर्दर्न के वो रन्स हैं जो उनकी बर्तरी को यकीनी बनाने की तरफ लेके जा सकते हैं। 2 ओवर्स अभी भी बाकी हैं। शानदार बैटिंग कर रहे हैं आमिर। अगर 180 तक ये पोस्ट कर देते हैं तो एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है नॉर्दर्न के पास, अच्छे पेसर मौजूद हैं। आज जमान खान की वापसी हुई है, वापसी नहीं बल्कि पहला मैच जमान खान को आज मिल रहा है। वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं इस तरह की सरफेस पे, ये भी देखना होगा। 188 रन आज ही सेंट्रल पंजाब ने यहां बनाए और मैच उन्होंने जीता। ऑफ द पैड चली गई। यहां तो जो एक बर्तरी थी मैदान में सदर्न पंजाब ने, वो इनकी गिरफ्त जो है वो ढीली उस वक्त ही पड़ गई थी जब उमर अमीन खेल रहे थे, लेकिन बाद में इस पार्टनरशिप ने इनको बिल्कुल ही परेशान करके रख दिया। 8 गेंदों में 26 रन बन चुके हैं। उसकी बड़ी वजह ये ओवर था जिसमें मोहम्मद इलियास जो हैं उनने यॉर्कर करने की कोशिश की तो भी स्ट्रोक्स लगे, ड्राइव भी, स्क्वायर ड्राइव भी, बैक ऑफ द हैंड करने के लिए गए और इस पर छक्का लगाया आमिर ने, जो अच्छी हिटिंग फॉर्म में है। थर्डमैन को इस वक्त दायरे के अंदर फाइन खड़ा किया गया। डीप पॉइंट उसके अलावा है, डीप कवर भी। लॉन्ग ऑन पर खुद आगा हैं और नो बॉल, और शायद ये आखिरी शाया है जिसकी ज़रूरत है इस मौके पर समीन गुल और सादरन को। प्रेशर यही चीजें करवाता है आपसे। समीन गुल ओवर स्टेप कर गए। फ्री हिट है।
ये रन्स काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए। बॉलिंग का आगाज़ बहुत अच्छा किया था, लेकिन उमर अमीन और आमिर जमाल जो है वो ये इनिंग्स उनसे बहुत दूर लेके जा रहे हैं, अब स्ट्राइक पे मौजूद हैं। सदर्न पंजाब की ये पहली नो बॉल निकली है इस नेशनल T20 कप में। इससे पहले बाकी पांचों टीम्स ने ही नो बॉल्स की हैं। और खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। बड़े ताकतवर हिटर हैं क्रिकेट बॉल के आमिर जमाल, और वो अपनी हिटिंग सलाहियतों का बड़ा खुलकर इजहार कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर। एटीएफ सदर्न पंजाब के जो पेसर्स हैं वो फील्ड के मुताबिक बॉल नहीं कर रहे। समीन गुल कोशिश इनकी होनी चाहिए थी विद इन स्टंप्स यॉर्कर करते, लेग साइड पे प्रोटेक्शन है, मिड ऑफ मौजूद था, उसके ऊपर से मारना बहुत आसान हो जाता है जब आउटसाइड ऑफ स्टंप आपको पेस मिल जाए, रूम मिल जाए, और इसी का भरपूर फ़ायदा उठाया है इलियास और समीन गुल को। थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपनी डेथ बॉलिंग में। आमिर यमीन अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं नॉर्दर्न की जानिब से। सबसे ज़्यादा आमिर जमाल रन बनाने वालों में। सुहेल तनवीर ने 151 रन बनाए। सहार पहले ही वार कर बैठे थे, गेंद निस्बतन जो है वो बाद में पहुंची। लगता ही है कि इस गेंद को मरी रोड पे फेंकना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा के बैट्समैन बहुत जोर से हिटिंग करते हुए नजर आए हैं। ये भी कम नहीं है, आमिर जमाल बहुत बड़े बड़े छक्के इन्होंने लगाए हैं इस मैदान में। पांच छक्के लगा चुके हैं। फील्डिंग 2 रन बिल्कुल भी नहीं देने दिए। हैरान मेरा ख्याल है दूसरे एंड पे खड़े बस नज़ारा देख रहे थे आमिर जमाल का। 2 गेंदें उन्होंने फेस की हैं लेकिन अभी तक कोई रन नहीं बना पाए। बहुत अहम इनिंग्स रही है कल के मैच में भी आमिर जमाल की, जो किरदार इन्होंने निभाया, और आज भी जिस तरह का टोटल नॉर्दर्न पोस्ट करने जा रहा है इसमें। तो आप जिस टोटल की बात कर रही थी मरीना 165 की, उससे नॉर्दर्न जो है वो 1 रन पहले ही आगे जा चुका है। अभी 8 गेंदें बाकी हैं। मौका है यहाँ फैसला कुन रन्स बनाने का। या मेहरान बाउंड्री ढूंढेंगे या 1 रन लेकर वापस स्ट्राइक देंगे अपने सीनियर पार्टनर को। विकेट कीपिंग इतनी अच्छी रही नहीं आज के दिन में, खासतौर पर जो नॉन रेगुलर विकेट कीपर्स हैं उनकी जानिब से। ज़ीशान अशरफ के लिए तो ये टूर्नामेंट ही इतना अच्छा नहीं रहा। दबाव वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ज़ीशान इसको कलेक्ट नहीं कर पाए। डॉट बॉल हो सकती थी, लेकिन अब ख़तरे की बात यह कि आमिर जमाल वापस आ चुके हैं। काफ़ी स्ट्रगल किया है ज़ीशान ने जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात है। बैटिंग में भी ज़्यादा रन्स नहीं दिखा पाए, बहुत करीब मामला था। एक हाथ से रोकने चले थे। ऑकवर्ड बाउंस अक्सर चौंका देता है कीपर्स को। इनको देखकर वो मोइनुद्दीन याद आ गए जो गोलकीपर थे पाकिस्तान हॉकी टीम के उस जमाने में। वो दौर था जब गोलकीपर का जो लिबास था वो इतना ज़्यादा महफूज नहीं हुआ करता था। बच के आपको गेंद रोकना पड़ती थी। 168, 7 खिलाड़ी आउट 19 ओवर्स के बाद।
एटीएफ सदर्न पंजाब की डेथ बॉलिंग अभी भी एक सवालिया निशान लेके फिर रही है। पिछले 4 ओवरों में 60 रन दिए इन्होंने नॉर्दर्न को। आमिर जमाल और सुहेल तनवीर, ज़्यादा फ़ायदा सुहेल तनवीर ने नहीं उठाया, लेकिन उमर अमीन की अच्छी शराकत रही और 11 गेंदों पे 30 रन आमिर जमाल अब तक बना चुके हैं। इमरान रंधावा को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। की कोशिश यही होगी कि 160 तक जाए। इनका भी काफ़ी इनकी कमी महसूस होगी। तो मकसूद से दोनों मैचेस नहीं खेल पाए, इंजर्ड हो गए थे। बैटिंग में एक बहुत बड़ा खलल ज़रूर है एटीएफ सदर्न पंजाब। जहाँ तक पावर हिटिंग की बात आती है और पावर प्ले को यूटिलाइज करने की बात आती है। फुल टॉस और एक और छक्का। इस वक्त आमिर यामीन जो हैं वो दोनों टीमों के दरमियान ये फैसला कुन रन बनाने के लिए कोशिश हैं और उनकी बराबर मदद कर रहे हैं। आमिर जमाल रादर बहुत उम्दा बैटिंग की है। आमिर जमाल ने 4 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं। लो फुल टॉस को उन्होंने उठा मारा। एटीएफ सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने भी इनकी बहुत मदद की है। जिस तरह की गेंदबाजी वो करते रहे हैं, लो फुल टॉस दी है या शॉर्ट पिच डिलीवरी पेस ऑफ के साथ बहुत टाइम मिल जाता है। वो पहले ही तैयार होते हैं। अगर आप उनका स्टांस देखें, डीप खड़े हैं क्रीज में, उनकी कोशिश होती है कि हर गेंद पे बाउंड्री आए। तो फिर ज्यादा जोर से खेलने चले गए। जहाँ उनका जो अगला पाँव है वो किसी हद तक वो खोल कर रखते हैं ताकि लेग साइड में हिट लगाने में आसानी रहे। खतरा बने हुए हैं आमिर जमाल। ये देखिए रफ्तार में रद्दोबदल किया और उसी पर झांसा देने में कामयाब हुए। पिछले ओवर में 9 रन बने थे और इस ओवर में ये अच्छी वापसी की। छक्का लगने के बाद अगली 2 गेंदें ही ये डॉट कर दी हैं इमरान रंधावा ने। दोनों गेंदें काफ़ी अच्छी थी। अपनी उंगलियों को रोल किया गेंद पे और इनटू द पिच। उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और एट टाइम्स बाउंस भी वेरी करता है। आमिर जमाल को खामोश रखने में कामयाब रहे हैं। पहली गेंद पे छक्का खाया था इन्होंने। अच्छा कम बैक है। 3 गेंदें अभी भी दस्तयाब हैं आमिर को। ये बहुत पीछे खड़े हुए हैं अपने स्टंप्स के। उनका पिछला पाँव जो है वो अक्सर पास चला जाता है। या यॉर्कर की तवक्को कर रहे हैं। वाइड फेंकी, फिर से करना पड़ेगी। बहुत रन्स बने। आखिरी जो 4 ओवर्स हैं 60 रन्स उसमें बन चुके हैं। नॉर्दर्न की टीम आज पहले मैच में 188 रन बने थे। नॉर्दर्न की टीम 175 बनाने में कामयाब हुई है। अच्छी बैटिंग पिच है और यहाँ पर सदरन को बड़ा गैर मामूली खेलना पड़ेगा। रन आउट का मौका है और पीछे रह गया अपनी क्रीज से मेहरान मुमताज। उन्होंने अपनी विकेट जो है वो कुर्बान कर दी आमिर को स्ट्राइक देने के सिलसिले में। वो करनी पड़नी थी। आमिर जिस तरह की जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक उनके पास रहती तो फायदा होता। अच्छी गेंदबाजी की है इमरान रंधावा ने। एक बार फिर पेस ऑफ थी इनटू द पिच और वापस आना ही था मेहरान को। कलेक्शन कोई मुश्किल नहीं दरकार हुई इस रन आउट का डिसीजन देने में। तो मरीना क्या करना होगा इस स्कोर तक पहुंचने के लिए? तो सदरन के बैट्समैन हैं, उनको तो ज्यादा खिलाड़ी फॉर्म में है नहीं, बैटिंग फॉर्म में। खुद सलमान अली आगा हाथ पांव मार रहे हैं। ये वाइड गेंद हो जाएगी। ये ओवर खासा तवील होता जा रहा है जिसकी इब्तिदा छक्के से हुई थी। तो 3 मुसलसल
वाइड गेंदें कर चुके हैं। इमरान रंधावा दरअसल दूर रहना चाह रहे हैं बैट्समैन से। एटीएफ सदर्न पंजाब के पास जो बैटिंग है, जैन अब्बास है, शहजाद हैं, ईशान अशरफ चल नहीं रहे, लेकिन जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये काफ़ी बड़ा टोटल लग गया है। फिरून अच्छी फॉर्म में नज़र आते हैं हमें, इलियास का इनको एज हासिल है। टॉप ऑर्डर इनका काम ज़रूरी हो जाएगा। ये काफ़ी ऊपर गेंद गई है और ये एक और छक्का। आमिर जमाल शानदार फॉर्म में, उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के खिलाफ। यहाँ बहुत देर से ये दरअसल इस मुसीबत को मोल ले रहे थे इमरान रंधावा और तैयार थे इस बार। आमिर इनटू द पिच, गेंद जूं ही गिरी, बहुत पीछे गिरी थी, खासा वक्त मिल गया था, वहीं से इस पर पिल पड़े और अच्छी कोशिश की बाउंड्री पर हसन खान ने, लेकिन आखिर में वो यकीन कर नहीं सके कि उनका पाँव बाउंड्री से कितना दूर है। उसमें अपना तवाजुन खो गए, साथ साथ गेंद को भी। और ये फुल टॉस, ये गिफ्ट था सरासर और 4 रन्स। तो इस तरह 187 रन्स नॉर्दर्न की टीम बनाने में कामयाब हुई, जो सेंट्रल पंजाब से 1 रन कम है। और 17 गेंदों में 47 रन धुआंधार स्कोर किए आमिर जमाल ने और उन्होंने हवाओं का रुख बदल के रख दिया। बहुत ही शानदार और लाजवाब इनिंग्स, 5 चौके और 4 छक्के लगाए इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने और दिल जीत लिए हैं उन्होंने अपने साथियों के और साथ साथ नॉर्दर्न के जो हिमायती हैं। दरअसल बहुत से चेहरे जो हैं मुरझाए हुए थे नॉर्दर्न के इस टूर्नामेंट में, उनकी बैटिंग इतनी ज़्यादा चल नहीं पाई थी। दाद देनी पड़ेगी आमिर जमाल को, जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स खेली। आगाज़ को ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था नॉर्दर्न का, लेकिन अंजाम बहुत अच्छा हुआ एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए। अब ये सोचने का मकाम है। टॉप ऑर्डर एक बार फिर स्ट्रगल करता नजर आया। कप्तान उमर अमीन की एक अच्छी इनिंग्स रही, 50 रन उन्होंने अपने मुकम्मल किए, लेकिन जो फ़र्क डाला है वो आमिर जमाल ने डाला है। जिस तरह की हिटिंग इन्होंने की है, गेम को बहुत दूर ले गए एटीएफ सदर्न पंजाब से। अगर बॉलिंग पर नज़र डाली जाए तो ये दोनों इनके सरकर्दा बॉलर थे अली और समीन गुल, उन्होंने नई गेंद आला तरीके से की। दोनों ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया 8 ओवर्स में 49 रन देकर, लेकिन जो आने वाले बॉलर्स थे वो खासे महंगे रहे। इलियास जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो सकी, 42 रन 3 ओवर्स में दे गए। सलमान अली आगा भी आज 1 विकेट हासिल कर सके और फैसल अकरम और इमरान रंधावा ये दोनों महंगे रहे। आमिर जमाल इस वक्त हमारे साथ हैं जो बहुत ही धुआंधार खेल कर आए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर जमाल, तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया और कुछ अपनी इनिंग्स के मुतालिक बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। दूसरा ये था कि हमारा प्लान था कि हमें मिनिमाइज जितने भी मुझे मिलेगा तो उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। कोई ये नहीं है कि प्री प्लान कुछ भी नहीं था, बस वहाँ मेरिट पे खेलना था, ऑल सामने खेलना था। जितना भी जो भी बॉल आपको जहाँ मिले आप बस वहाँ खेलें, कुछ प्लान बना के नहीं खेलना। तो बस वही जो प्लान दिया गया था वो एग्जीक्यूट किया और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। ये बताइएगा कि आप क्योंकि एक बड़े हिटर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो हिटिंग जोन जो है वो ख़ास टारगेट करते हैं या फिर गेम को देखकर फिर हिट करने के लिए जाते हैं? नहीं तारिक भाई, जैसे ही बॉल रिलीज़ होता है उसके बाद ही मैं प्लान बनाता हूँ। अगर पहले से प्लान बना लिया जाए तो वो अक्सर ऐसे हुआ है, 2-3 ऐसी इनिंग्स मेरी गई हैं जिसमें मैंने प्री प्लान खेला था और उसमें मैं आउट हो गया था। तो अभी मैंने वापस जाके यही सोचा कि नहीं, अभी प्री प्लान नहीं खेलना, जो बॉल जहाँ पे मिलेगा उसको वहाँ जाके मैं टारगेट करूँगा। तो इस हदफ के बारे में क्या ख्याल है? आपकी बॉलिंग में इतनी सख्त है, आपकी टीम की बॉलिंग में, जो इसको डिफेंड कर सके? जी तारिक भाई, इंशाल्लाह हमारे पास एक्सपीरियंस है। सुहेल भाई जैसे प्लेयर हमारी टीम में, शनवारी भाई जैसे हैं। हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, महरान मुमताज़ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुहेल भाई बहुत अच्छी इकनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। तो होपफुली हमारा पहला जो प्लान था कि वो हम 150-160 तक करें, लेकिन अभी हमारा टारगेट बहुत अच्छा हो गया, 188 हो गया। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको डिफेंड करें। बहुत शुक्रिया आमिर जमाल, और बहुत ही उम्दा आपने खेल पेश किया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू तारिक भाई, जज़ाकल्लाह। ओपनिंग पेयर आया था नॉर्दर्न का और पहली ही गेंद पे अली माजिद ने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की।
हसन नवाज आज कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल लगे नहीं, कुछ रन उनको ज़रूर मिले, 2 चांसेस भी मिले, लेकिन इस बार इलियास ने कोई गलती नहीं की और कैच आउट हो गए, उनको जाना पड़ा। उमर अमीन ने बहुत ही जिम्मेदार इनिंग्स खेली, कप्तान की ज़रूरत मौजूद थी आज, नॉर्दर्न को मिडिल ओवर्स में दरकार थी। जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली आज उनकी क्लास नज़र आई, आड़े हाथों लिया स्पिनर्स को भी। फैसल अकरम काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए और ये एक सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं आप। उमर अमीन ने दूसरे एंड को संभाले रखा, नॉर्दर्न के पास थोड़ा बहुत मोमेंटम बनना शुरू हुआ था। ये एक अच्छी एफर्ट थी और इलियास एक बार फिर उनको इस गेम से बाहर नहीं रखा जा सकता। मिडिल ओवर में कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सका नॉर्दर्न, लेकिन उमर अमीन की अच्छी हिटिंग जारी रही। मुबस्सिर ने थोड़ा सा साथ ज़रूर दिया, लेकिन अली माजिद एक बार फिर अपना जादू दिखाने में कामयाब हुए। यहाँ सोहेल तनवीर ने भी अच्छी कैमियो यहाँ पर खेली और बाउंड्रीज टीम को दिलाते रहे, स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। उनके हमरा मौजूद थे, मुबस्सिर खान भाई बड़े जारहाना मूड में थे, सामने अच्छे शॉट खेलने में कामयाब हुए। ऑन द ऑफ उन्होंने ये चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाया, बाद में एक छक्का लगाया समीम गुल को स्लो डिलीवरी पर, और फिर वो कट करने के लिए गए गेंद को जो उछलती हुई जा रही थी, थर्ड मैन का दे बैठे। सोहेल तनवीर जो हैं खुश नसीब भी रहे, लेकिन फिर कैच आउट हो गए बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद शहजाद के हाथों। ये ओवर खासा महंगा रहा, यहीं से आमिर जमाल का खेल शुरू हुआ, जिन्होंने बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। शहजाद ने फील्ड में गलती की, ग्राउंड शॉट्स भी अच्छे देखने को मिले। ये 2 बैक टू बैक चौके ऑफ साइड में लगाए आमिर जमाल ने, और ये बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी करना खासा महंगा पड़ा मोहम्मद इलियास को। बाउंड्रीज आखिर तक रुक नहीं सकी, चौके छक्के लगते रहे, बड़ी बेदर्दी के साथ पिटाई की और ऐसे में रन आउट हो गए। मेहरान मुमताज दूसरा रन लेते हुए आखिरी ओवर में छक्के और चौके के साथ स्कोर 187 तक आमिर जमाल ने पहुंचाया और 47 रन पर नॉट आउट वापस आए। तो 188 रन चाहिए हैं सदर्न पंजाब को जीत हासिल करने के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा, ये हम जानेंगे एक वक्फे के बाद।
Very warm welcome back to the Rawalpindi Cricket Stadium. Run chase is about to begin in this clash of Northern versus ADF Southern Punjab, the Kingdom Valley National T20 Cup 22-23. We saw some scintillating batting in the first innings. Today has been a high-scoring day. That's the story of the first innings of Game 2. Northern put up a good batting performance. Skipper Umar Amin leading from the front. Very, very elegant 52 of just 42 deliveries. Mubassir Khan came good today. Found a method in this format. Made 34. But the innings of the day came from Amir Jamal. 47 of just 17 deliveries. Some tremendously clean striking of the ball. And this is not the first time he's done that in this tournament. Propelled Northern to 187 for 8. Ali Majid was impressive up top. So was Samin Gul. Wickets were shared around by them and didn't give away many runs. But towards the later half of the innings, they came under fire. Randhawa went for 38 of his 4. And Ilyas, none for 42 of his 3. Went for plenty. That is the target, 188, a formidable target. We haven't seen many successful run chases, certainly not as big as this one. The opening batters are taking to the field. ATF Southern Punjab gave 79 in the last 5. We've got a score which is very close, or in fact just a run away or different from the first game. 2 high-scoring games that we've seen. It's going to take a lot of ask from the ATF Southern Punjab batters to get close to this. But it's very much possible. If one can do, the other can too. Sohail Tanveer is going to not make it easy for you with a new ball. 187 for 8. Mohammad Shahzad. Second game of the tournament for the youngster. Then Abbas, 1,550 runs, average of 27. That strike rate over that period of time, 115, likely on the lower side. 37 years of age. Sohail Tanveer, 384 wickets. He played this format all around the world. Still very keen to continue, and he's done well in this championship as well. The slip in position. Sohail Tanveer, Fire says play. We see some swing or not. He swings that one away from the right-hander. That angle makes it even more difficult for the batsman to get behind the line of the ball. Shahzad, 219 World Cups for him. He's the youngster from Pakistan under-19. Got the talent. Looking forward to move ahead. Can he give them a good start along with Zain? Slip in place, pretty regulation on the offside inside the ring. Called early. Oh, was it a good call? I don't think so, because a direct hit would have had him. He came in pretty close. He had one stump to aim at. Was gone for all money. When I said one stump to aim at, probably had a little bit more of that. Only 10 or so yards out.
Bit of cloud cover now. So Sohail Tanveer, who's a good exponent of bowling with the new ball, probably will enjoy these conditions. Runs. Off the mark, Zain with that single. Exactly the same as it was in the previous game. So 9.54 is required. You go slow, that will be rushing up to 11, 12, and then will become difficult to sustain over such a long period of time, which will be like 19 overs after this. This power play is important. We've seen players who look to bludgeon the ball have struggled, but if you're prepared to time the ball and allow the ball come too close to the bat and still get good timing, just like this one, but the sweeper is back. As the tournament has progressed, these teams are looking to find out their best 11. Northern are playing Zaman Khan today for the very first time in this championship. Dragged it a little bit towards the onside. He lost his shape, was looking to hit it through the offside. Well, he's looking to push the ball up to get that swing. Haven't seen much so far. The speed on the ball and the impact just sometimes turns the bat in your gloves. The handle just rotates. You don't have a firm grip. It just makes the ball go in the non-intended direction. Down the wicket. Shahzad can do that very well. And just rolls over the rope. And so does the fielder. Boundary to end the over. It's 8 for none. Not right off the meat, but the intention were good. Advanced at Sohail Tanveer. He's not as quick as he used to be. Shahzad will gain confidence from that boundary. 8 for none after 1. Look at that. What happened right at the end of the innings. 47 of just 17 from Ahmed Jamal. 34 of just 18 from Mubassir. And up in the order, the captain got a 50. But the chunk, 17 odd runs in last 5, that hurt ATF Southern Punjab. Just like a batting innings, you want to start well with the power play and end well in the last 5. It's same goes for the bowlers. You got to bowl accurately and well. You know the batsmen are going to go after you in the last 5. We've seen in both the games, the cause of the loss was the number of runs given in the last 5. Too big a score to chase. And in the last game against Sindh was winning the game up until the 19th over of their innings because they needed 21 in the last over, whilst they conceded 23 in their bowling innings. Mehran has shown good promise in this championship. He's bowled at difficult times inside the power play. Never easy for a spinner. Not much purchase from the wicket with the new ball. It's just the natural variations of length and pace. Yeah, runs. The length was short. He's lucky that didn't go for a boundary. Just
a little bit of turn as well. That cramped Zan Abbas. He should have done better with that. That had a boundary 4 or 6 written all over it. Southern Punjab have had these struggles of their own inside the power play. Zan Abbas with 1/2 century in the tournament. Azad is playing only his 2nd game. This is Aman Khan making his first appearance in this tournament. Are you surprised he didn't bowl with the new ball, Sikandar? Generally does quite well. Yeah, the modern day T20s, they look for, usually the left arm spinners can be skiddy, use the new ball, but he's bowling a little too short to this captain's liking. He's being preferred over Omar Khan. He's sitting in the dugout. Both of them left arm spinners. Omar can turn the ball both ways. I haven't seen much of him in a long time. At least I haven't. Mehran Mumtaz being preferred. Mehran Mumtaz has come through the ranks. One of the products of the underage cricket as well. Been in the loop for quite some time. Up and over. This time he got underneath it. That short length has finally been put away by Zan Abbas. He had a couple of goes at that, but this time he made full use of that. 2 gone, 16 for none. The warm-up gear had been left out on the outfield. White. That short length that we were talking about, Mehran Mumtaz was lucky that he got away with a few deliveries earlier on. Then Abbas really was good enough to put that one away. Disappointed with his length. Can't get away with this kind of bowling inside the power play. Off to a decent start, ATF Southern Punjab. They keep it close to the body. That's Suhail Tanveer. Don't dance around and come down the wicket to the big man. This gives a little stare to the youngster. A fiery character, Suhail Tanveer. He has his moments in the past. Not only in PSL, but some other leagues. Look at that. This time he was just content with the glare. Not with. No matter how old you are, how young you are, a fast bowler has a certain nature. He's bowling to an experienced batter or a youngster. He'll just tell you who's boss. Slower one. Just dips into the batsman. Single on that occasion. Overstepping, the experienced man. No ball. That's the kind of problem Northern had in the previous game as well. They conceded 2 free hits. And this one is another one inside the power play. What Northern can do is they can change the field because the batter has turned over the strike. So a couple of sweepers on the onside. Mid-on is going back. Quillig is already back. And that's all they can have.
Top of your picture, you can see both third and fine leg are up in the ring. Shot. Full advantage of that free hit. Dispatch a long on pavilion. Was a huge hit. He really saw that slow delivery nice and early. Look at that. Front foot out of the way. Clean swing through the ball. And it soared, landed in the stands. There was a fielder at long gone, but he took him on. Modern day batters, they're not scared to take on the boundary riders because they have the confidence they can clear the field when they want to. Look at the pace at which ATF Southern Punjab have started off with the chase. Into the third over, 26. They've got 10.4 at the moment. Their current run rate required is just around above 9. But they've got to maintain that. What that start means is that they haven't allowed that run rate to go up nice and early. They're keeping up with it thanks to strokes like this. And Abbas has really gained in confidence after that half century. This is the kind of start that they really needed. Skipper Salman Ali Agha will be expected to come good today. Good run, good comeback from Sohail Tanveer. Really, it is a surprise to see Mehran bowl in the power play, knowing that Zain Abbas lately started to struggle against genuine pace and with unusual action of Zaman Khan. We saw in training, he was the quickest of these northern bowlers. But posed a different challenge to Zain Abbas. Managing the pace of Sohail Tanveer quite comfortably. Angling the ball away to rotate the strike. Zaman bowled so well. He won them a game, I remember. It was the last over that was given to him. He saved the game in Karachi. It was during PSL. He's gained a lot of confidence and the cricketing sense. Thinking bowler is out of what you need to be. And he showed a lot of class in that last over. Mixed it up so well. Surprising to see playing his first game. Gone over the keeper. The runs count. They do count when you are trying to get 188 to win. This is a big over. Keeping up with 10 and over, 32 for no loss. Not happy about something, Zishan Ashraf. Don't exactly know why. Somebody just told him he was on the screen, so managed to get a smile out of him. And that's the man we were talking about, Zaman Khan, 19 games, 24 wickets. That average is pretty good. 8.2 is the economy rate. Good temperament earlier on in his career. Bowled well in pressure situations. No! Really impressed everyone in the PSL. He was discovered last year and played as an emerging player in all the games for Lahore Qalandars. And he really excelled.
For someone so new and so inexperienced, his set of skills was amazing, but more than that, his temperament really stood up tall in difficult situations, and like Sikandar mentioned, he became an instant match winner. Look at that. Got a slinging action. Comes right in front of umpire Samir Haidar's shades. There. It'll be difficult to pick if you are facing him for the first time. Then Abbas picks him up, nice and easy, just close to that rope. One bounce, 4. They come quick, they go quick. Then Abbas set himself for that. Was angling away from him, but he's got his eye in, he's got the pace of the wicket. He picked his spot and deposited him. Just the one bounce over the line. Very strong bottom hand. Fetch that ball from outside the off stump and get that elevation. Zaman's response will be very, very interesting. It's a good start, this, from ATF Southern Punjab. You like the fight back. Slightly slower, and it's going to put away for 4. Very clever. Just held his shot for a moment and just swirling around on the toe, playing it behind the square on the onside. The key was that he picked the slow delivery, waited just that little longer, swiveled on that back foot, just helped it on its way. One leg was up in the ring. That's good, intelligent batting from Zain Abbas. Really cashing in on that good form that he's lately found. Helping his team, keeping up that 10 and over run rate. Well, make that 11, more than 11 runs and over. With that boundary, it just shoots up to 11.48, the current run rate. Another very, very neat deflection. Just angling away. Just turned his wrist a little bit and guided the ball through the gap. No force whatsoever. He didn't need any. Timing and placement mattered the most. And Zaman under pressure immediately. A hat-trick of boundaries from Zain Abbas. Keeper Umar Amin got a worried look. Shot. This time it's all the way. The umpire is going to double check and confirm, and now he signals a 6. That's a big over. 2 dot balls, then a boundary, and a 6. 18 already. And 50 up for ATF Southern Punjab after 4. A bit of a cloud cover, and we have some spectators in attendance as well. Really enjoying the action. 50 has been brought up inside the first 4 overs. And this is ATF Southern Punjab's best power play already with still 2 overs to go. They've really took Northern to sword, especially Zaman Khan came under fire. Slightly short of a length, allowed him to use his pace. The last one was a quick bouncer. But that hook shot earned him a 6, and Zaman didn't know what hit him. This has to be a good over from Usman Shinwari because he has to cover up for the 18 in the previous one. 3 boundaries and a 6, which you just saw.
What a blistering start, this ATF Southern Punjab. 50 for no loss after 4.1. Still got 11 deliveries in the power play. Get yourself to 70. You get Umar Amin worried. So that makes the job a lot easier for the middle order as well. You can get ahead in the run rate. So it's bound to happen at some stage. The fielding side will make a comeback with 2-3 good overs. But this advantage that ATF Southern Punjab has had in the first 4 overs, they can afford to do that and still remain in the game. Rollicking start, really. What can Northern do to break this partnership? Regulation field still inside the power play, so only 2 fielders can go out. No! Must give batters a huge confidence when they see that the bowlers are running in, not to try to get them out, but to stop them from scoring. This is the feel you'll get when you look at that field right now for Shinwari. What the start has done is reduced the required run rate from 9.5 to 8.5, around 8.8. You can get one more good over here, then you see you got to score at 8 runs and over. You got things in control. Usman Shinwari is having a chat with his partner Sohail Tanveer. Don't know, is something not feeling too right with him. Just look at the power play score for Northern. They scored 31 and they lost 2. That was their power play score. But they scored 79 in the last 5. So you can say reversal is that ATF Southern Punjab is trying to get those runs in the power play. Make things a little easier. Still don't know what the problem is, but that just gives a bit of a drinks break to the batters. I think he's they're already torn, but he's probably further given it a rip. He doesn't want to get rid of them. That must be, I can't believe that he's got only 1 pair of shoes. It must be something special about them. No, I don't think it's they're torn or anything. It just provides him a better grip. His foot feels right in the boot. Also provides certain pressure points on the landing foot, on the front foot. Times have changed. To be honest, I haven't seen anything like this before because that tape goes under towards the sole and the spikes as well. Would it not hinder his grip when he lands? No, it'll just rip through the spikes and just hold the boot. Excellent, Northern! It's not a bad thing. You probably look at this over and you say just 1 run, but they're facing him. That's his first over, Usman Shinwari. So they don't want to make a mistake. They want to make sure that they've got it right. What is he trying to bowl? And don't take it away from Usman as well. Over from Sohail Tanveer went for 11. And the over after that went for 18. I think he went for 16. 16 and 18, 2 big overs. And a shot using the pace. Just slightly onto the hips. And he picks it up, Zain.
Must have a good piece of willow as well. He just swiveled around once again. That angle helped him. Just guided the ball in the direction it was heading anyway. Helped it on its way, and it went a long way. Cleared the field. Went over the fence into the stands. Just a mere flick. What one good innings can do to you. And Abbas was struggling in the early games. He lost his wicket as well on a no ball. But then that slice of luck went in his favor. He went on to score a half century. And today, 41 of just 19 deliveries. He's given his side a magnificent start. End the over with a single. They'll get 8 of the over. It's 58 for no loss after 5. ATF सदर्न पंजाब ने पावर प्ले में अपना ये रिकॉर्ड स्कोर बना लिया है पहले ही। अभी 6 गेंदें बाकी हैं। जैन अब्बास, इनको वो नो बॉल रास आ गई, वहाब रियाज ने की थी जब ये आउट हो गए थे सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, और उसके बाद से ये रन्स बनाते चले गए। आज 4 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं। 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है। उनके साथ शहजाद भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आमिर जमाल अब एक्शन में होंगे। इस साथ एक्शन में अली यूनुस। या बैटिंग के बाद अब बॉलिंग में जादू दिखाना होगा आमिर जमाल को। विकेट हासिल करनी होगी यहाँ पे, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा जो कि पहुंच गया 59 रन पर। दूसरी तरफ सदर्न पंजाब के लिए एक आइडियल स्टार्ट है क्योंकि बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं। 129 रन मजीद दरकार हैं और वो चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप जितनी लंबी जा सके, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग लाइनअप पे। सलमान अली आगा ज़रूर मौजूद हैं लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो चाहेंगे कि ये लंबी जा सके जाए पार्टनरशिप। ज़्यादा फॉर्म भी नहीं है सलमान अली आगा के अलावा। जीशान अशरफ जो हैं वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और सुहेब मकसूद टीम को दस्तयाब नहीं है, वो ज़ख्मी हो गए थे। और बड़ी हद तक जो दारोमदार है वो शारून सिराज पर है। और अब ये 2 जो ओपनर सेट हो गए हैं, अब इनको कोशिश यही होनी चाहिए कि सर बसर जाएं। ज़्यादा ज़ोर से हिट कर बैठे, ये इनके खिलाफ जो है जा सकती थी यही बात अगर ये थ्रो लगती मिड ऑफ से। जीशान मलिक थे वहां। या रियलाइज कर लिया था कि फील्डर जो है वो सर्कल के एज से आ रहे हैं और शायद पहुंच जाते अगर डायरेक्ट थ्रो भी हो जाती। अच्छी क्रिकेट दोनों बैटर्स की जानिब से, स्पेशली जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो जो नो बॉल था वहाब रियाज का, उसके बाद से तो ऐसा लगा जैसे इनकी किस्मत ही बदल गई है। हर बॉल मिडल कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, तेज रन्स कर रहे हैं। यहाँ पे भी 21 बॉलों पे 43 रन्स बना चुके हैं। मच नीडेड स्टार्ट है ये सदर्न के लिए। ये शॉट, उम्दा शॉट और 6 रन्स। रिजर्व अंपायर जमीर हैदर ने कैच जरूर लिया, लेकिन ये स्कोरर जो है इसे शुमार नहीं करेंगे। ये छक्का शुमार होगा जैन अब्बास का आज के दिन का चौथा। क्रिकेटर्स हो, अंपायर्स हो, कैचिंग क्वालिटी बहुत शानदार रही है इस टूर्नामेंट में। देखिए जस्ट फ्लिक किया, थोड़ा एंगल भी किया बैट को फाइन लेग की जानिब। ये डेलिबरेट शॉट है, इसे हम कोई फ्लूक नहीं कहेंगे, ये एज नहीं कहेंगे, ये प्री प्लान शॉट है। बहुत ही शानदार कैच। ये सीजन अच्छे कैचेस का है यार। ऐसे शॉट्स जो हैं ये किस जमाने में सईद अनवर खेला करते थे फास्ट बॉलर के खिलाफ। एक बार एलन डोनाल्ड को उन्होंने 2 छक्के लगाए थे जनूबी अफ्रीका में सैफ अली की टूर्नामेंट के फाइनल में। ये पाकिस्तानी टीम पहली बार जनूबी अफ्रीका गई थी तो उन्होंने 2 छक्के एलन डोनाल्ड को लगाए थे। अभी भी फिट है। ये आखिरी सीजन है अंपायरिंग का जमीर हैदर की।
लेकिन अच्छी नज़र है, महफूज हाथ हैं। स्माइल दे सकते हैं क्योंकि क्या शानदार रहा है। बस एक रन दूर है अपने 50 रन पे। अभी मजीद इंतजार करना होगा। एक रन उनकी टीम को जरूर मिला है वाइट के जरिए। तो आज का दिन अभी तक बैटिंग डे साबित हुआ है। दरअसल रावलपिंडी में जब धूप निकलती है तो रन्स की गंगा वो बहने लगती है। तो जैन अब्बास ने भी उसमें हाथ धोए हैं। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। रिकॉर्ड स्कोर बना दिया है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। कोई भी टीम ATF सदरन ने 67 रन बनाए हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच सकी। सिंध का रिकॉर्ड था इससे पहले 60 रन का, जो आज ही बना इस पिच पे। अच्छा, अब तक की सबसे बेहतरीन बैटिंग पिच ये साबित हुई और 50 रन अपने मुकम्मल किए। उनके करियर की 12वीं निस्फ सेंचुरी। बहुत ही शानदार, बहुत टाइमली इनिंग रही है। बहुत ही स्टाइलिश भी हम कहेंगे जैन अब्बास के लिए। 2011 से ये खेलते हुए आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भी बुझे बुझे थे, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से एक बिल्कुल मुख्तलिफ जैन अब्बास देखने में आया है। दिल जीत लिए इन्होंने ATF सदरन पंजाब के जो लाखों मद्दा हैं उनके। आखिरी गेंद पर रन हासिल नहीं कर सके। शहजाद यूं पावर प्ले जाता रहा जिसमें 68 रन बने किसी विकेट के बगैर। अंपायर इम्तियाज इकबाल ने हाथ का इशारा दे दिया है। बैट्समैन को भी ये बावर कराना होता है कि अब फील्डर्स 5 पीछे चले गए, अब उतनी आज़ादी के साथ शायद आप ना खेल सकें। अब यहाँ से इनिंग को पेस करना होगा, ज़्यादा दारोमदार सिंगल्स और 2 पे रखना होगा। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इस पार्टनरशिप को लंबा जाना होगा। 12-13 ओवर्स तक इनको खेलना होगा दोनों बैटर्स को। इनके जो फ्लिक्स हैं जैन अब्बास के, जैसे बात हो रही थी कि सईद अनवर ये कभी कभार वो शॉट्स खेलते थे, ये सईद अनवर के साथ क्रिकेट खेले हुए हैं। ये इम्तियाज इकबाल मलिर जिमखाना में, ये जो अंपायर हैं आपकी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। और ये पावर प्ले में हमने अच्छे शॉट्स खेले, कदमों का इस्तेमाल करते हुए फास्ट बॉलर के खिलाफ बैट्समैन नजर आए और खासी बेदर्दी के साथ हिट्स लगाई गई। किस्मत ने भी याबरी की और साथ साथ टाइमिंग बड़ी लाजवाब थी। लेफ्ट हैंडर की आड़े हाथों जमान खान को उन्होंने लिया। फिर यामिर जमाल जिन्होंने खुद खासे छक्के लगाए, इस बार वो रिसीविंग एंड पर थे। जी, अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बैटिंग पिच साबित हुआ है ये। जैसे आपने जिक्र किया था कि पहले मैच में भी बहुत रन्स बने और यहाँ पे भी बहुत ही आसानी से रन्स बन रहे हैं। बॉलर्स के लिए बहुत परेशानी है। जो भी बॉलर ज़्यादा वेरिएशन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा वही यहाँ पे कामयाब हो सकेगा। यहाँ पे चांस हो सकता था पर वक्त मना किया यहाँ पे जैन अब्बास को। एक बार हवा में खेला, पीछे फील्डर हैं लेकिन ये उनसे कहीं दूर गिरी हसन नवाज से। ऐसा लगता है कि इनका भी घुटना जो है ये ट्विस्ट हुआ है या मुश्किल में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने स्पाइक्स के साथ इतनी क्रिकेट खेली ना हो इससे पहले हसन नवाज ने। नॉर्दर्न अफोर्ड नहीं करता है एक और बैटर डाउन
यहाँ पे देखना होगा कब ऐसा लगा। यहाँ जब ये थ्रो करने के लिए आए हैं तो उस वक्त इनका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा गया है इनके दाएं घुटने की तरफ और ऐसे में ही जख्मी हो गए हैं। इन खेल को कुछ देर के लिए अंपायर्स ने यहाँ पर रोक दिया है। टीएफ सदर्न पंजाब के खिलाफ शायद नॉर्दर्न की टीम जो है उनके कप्तान बुरा नहीं मनाएंगे, उनको कुछ वक्फा मिल सकता है सोच विचार करने का कि अब बॉलिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि विकेट की उनको अशद ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं कि ये बाएं पांव पर जब आखिर में उनका वजन गया वहीं पे तकलीफ के आलम में नजर आए। खेला हवा में पॉइंट के ऊपर से 4 रन, जैसे फ्लैश किया शहजाद ने, गेंद उनकी तवक्को से ज्यादा उठ गई थी लेकिन आखिर में आसानी के साथ फील्डर को क्लियर कर लिया। या रूम दिया और तेजी से बल्ला घुमाया, फ्लैट बैटेड कहेंगे, लकी रहे कि फील्डर के ऊपर से बॉल चला गया क्योंकि इतनी जोरदार तरीके से तेज से ये बल्ला घुमाया गया था कि फील्डर के सर के ऊपर से जाते हुए 4 रन हासिल किए। बहुत ही टैलेंटेड हैं शहजाद, देरा गाजी खान से इनका ताल्लुक, एक अच्छे उभरते हुए ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, ये भी काफ़ी नज़रें हैं इनके ऊपर। और दूसरी तरफ मसाइल बढ़ गए हैं नॉर्दर्न के लिए क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है अब 75 तक पहुंच गई है। ये रिवायती अंदाज से खेलने वाले बैट्समैन हैं शहजाद, इसलिए कभी कभार जब ये जाते हैं स्ट्रोक करने के लिए तो वो जो इनकी शेप है वो बिगड़ जाती है। बार तकरीबन धोखा खा गए थे इस कटर के जरिए। सदर्न पंजाब ने नया रिकॉर्ड बनाया इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप में पावर प्ले का। कोई विकेट भी हमने नहीं गवाई। सिंध ने आज 60 रन स्कोर किए थे। साइम अयूब अच्छा खेल रहे थे इस पावर प्ले में। बलूचिस्तान की टीम ने 2 बार 50 का हिस्सा अबूर किया है। सेंट्रल पंजाब की टीम जो है वो 2 बार हो रही है, वो छड़ी के गलत तरफ रही है। एक और चौका, बहुत ज्यादा खराब गेंद थी और उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। शहजाद जो बाउंस से परेशान हो रहे थे, इस बार उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। एक और महंगा ओवर उस्मान शिनवारी का जो डबल फिगर में गया 7 के बाद 79 पर कोई नहीं। मैदान बचे शाबाश। इधर कट पे 2 जो अंदर होंगे थोड़ा। सोहेल भाई आप शॉर्ट थर्ड मैन हो जाए, शिवारी को पॉइंट पे कर। जिमी भाई पॉइंट पे आ जाए। जिमी भाई इधर 1-2 अच्छे ओवर होंगे यार मैच में। जमान इरफान फाजिल अपने ज़माने के बहुत ही तेज़ फास्ट बॉलर थे। तो यहाँ पे फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं सदर्न पंजाब के लिए और उनकी अच्छी काविशें रही हैं, बहुत ही शानदार कैचेस पकड़े हैं। अगर आप एग्जांपल लें लियास की तो वही काफ़ी है इनकी तारीफ करने के लिए। यहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा एक आउटराइट फास्ट बॉलर जो फील्डिंग कोच बन गया। पिछले सीजन में भी थे। यही बहुत मेहनती क्रिकेटर हैं, खुद भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं। आज इस उम्र में भी बहुत आला शाबाश। महरान मुमताज आ गए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन करने के लिए। विकेट चाहिए क्योंकि यहाँ पर हालात जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा अच्छे रहे नहीं उमर अमीन के लिए, क्योंकि रन बनाने की दरकार औसत है वो 8.5 तक आ गई है। या किंगडम वैली एक रॉयल लाइफस्टाइल है। आप जा सकते हैं उनके फेसबुक पेज पे और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजिंग जीत सकते हैं।
यकीनन आप नेक्स्ट विनर हो सकते हैं। काफी फाइन खेले, एक ही रन बन पाया। यहाँ पे देखना होगा क्योंकि आपको कंटिन्यूसली रन्स बनाते रहना है सदर्न पंजाब के लिए, क्योंकि रन्स करवा बहुत दिए हैं। अभी भी 107 रन्स मजीद दरकार हैं और ऐसे गेम में अगर 1 या 2 ओवर अच्छे नॉर्दर्न की तरफ चले जाएं तो हालात बदल सकते हैं। इसलिए इस पार्टनरशिप को लंबा जाना है, कंटिन्यूसली रन्स बनाते रहना है। और शहजाद जो है ये अपना खेल खेल सकते हैं अपनी रफ्तार पर, जिस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। जैन अब्बास इस बार रिवर्स पैडल किया बड़े खूबसूरत अंदाज से। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बाउंड्रीज खत्म नहीं हो रही एटीएफ सदर्न की। या उल्टा मारिए सीधा मारिए, सब जैन अब्बास की फेवर में जा रहा है। एक और बहुत ही शानदार शॉट, एंड तक नजरें रखी बॉल पे और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया इस शॉट को। किंगडम वैली नेशनल T20 कप में ये ओपनिंग का भी रिकॉर्ड अब हो चला है। जैन अब्बास और मोहम्मद शहजाद ने साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नॉर्दर्न के ही खिलाफ दोनों ने 83 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। ओपनर्स को ये बॉलिंग पसंद है नॉर्दर्न की। जी हाँ, सोहेल तनवीर मौजूद हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और आज तो जमान खान को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो भी अभी तक। यहाँ पे 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 86 बगैर किसी नुकसान के एटीएफ सदर्न पंजाब। पांच बॉलर्स का इस्तेमाल किया है सोहेल तनवीर। 2 ओवर में 24 रन दिए हैं, महंगे साबित हुए हैं। मेहरान मुमताज 2 में 15 और जमान खान 1 ओवर ही कर सके, 18 रन दिए उन्होंने। आमिर जमाल 1 में 10, उस्मान चनवारी 2 में 19। लेकिन विकेट कॉलम वो खाली है, ये परेशानी की बात है नॉर्दर्न के लिए। और यहाँ पे वो चाहेंगे कि 1 विकेट हासिल की जाए, इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए और गेम में वापस आया जाए। जैन अब्बास लेग साइड की तरफ देख रहे हैं। एक तो बाउंड्री का फासला कम है और दूसरा जो है कि मुबस्सिर के खिलाफ अगर अगेंस्ट द टर्न हिट करने के लिए जाते हैं तो इनको हवा से भी मदद मिलेगी। विद द विंड जो है लेग साइड में ये हिट लगा सकते हैं, लेकिन क्या इस चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कि अगेंस्ट द टर्न हिट करने के लिए जाएं ऑफ स्पिनर को? विद द विंड खेलने के लिए गए या विद द स्पिन रादर खेलने के लिए गए, उसी करें। ये अच्छी बैटिंग की है कबीर वाला के। आज 2 क्रिकेटर हैं सदर्न पंजाब की टीम में और इस बार उठा खेला, फील्डर ने दिलचस्पी ली और कैच गिरा गए। बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे उमर खान और ये गलती की उमर अमीन ने कि उनने छोटे कद के फील्डर को बाउंड्री लाइन पर खड़ा किया और उसी से ही विकेट और छक्के में ये फर्क जाहिर हो गया। यहाँ सब्स्टिट्यूट फील्डर है उमर खान और आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद थोड़ा लंबे कद के फील्डर होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। एक और रिवर्स शॉट, एक और चौका। जैन अब्बास पिटाई के मूड में हैं, बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे ऑफ स्पिनर मुबस्सिर को। और एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम अब ये सेंचुरी स्टैंड के करीब आ गई है ओपनिंग के। जी हाँ, आज जैन अब्बास कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सिंगल हैंडेडली इस मैच को नॉर्दर्न से परे लेके जा रहे हैं। ये पार्टनरशिप बढ़ के 96 रन की हो गई है। हर तरह का शॉट देखने को मिल रहा है हमें इस इनिंग में। नहीं वेल बोल्ड मोबे। ये 14वां मैच है नेशनल T20 में और सिर्फ एक ही सेंचुरी पार्टनरशिप अभी तक देखी गई है। ईशान मसूद और अब्दुल वाहिद मंगलजई के दरमियान हुई थी। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से
रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए, प्रिडिक्टेबल हो गए थे जैन अब्बास। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे लेकिन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। थोड़ा ये अच्छा शॉट है, 2 रन यकीनी मिलने चाहिए। जी आसानी से हासिल कर लेंगे 2 रन। जैन अब्बास 70 रन पर पहुंच गए हैं। ये बहुत कमाल की इनिंग है, बहुत खुश होगा कैंप सदर्न पंजाब का, क्योंकि ऐसे ही बैटर की कमी थी रन्स की। 9 ओवर्स के बाद 98 बगैर किसी नुकसान के ATF सदर्न पंजाब। जैन अब्बास ने आज बड़ी उम्दा बैटिंग की है और टॉप ऑर्डर को एक हम कह सकते हैं कि नए अहम के साथ उनने पेश किया है। सदर्न पंजाब के बैटिंग उनकी खासी कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, ये टीम सेटल लग रही है, अपने कदमों पर कायम हो रही है। जी हाँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस टीम में, लेकिन जिस एनर्जी से खेलते हैं, जितना जेल इन होके खेलते हैं, वो कमाल का है। सलमान अली आगा कप्तानी में अगर बैटिंग में रन्स नहीं कर रहे हैं तो बॉलिंग में विकेट्स हासिल कर रहे हैं, और यही कमाल है इस टीम का। और बहुत ज्यादा ऊंचा शॉट खेला और ये गेंद गैप में भी गई। अंपायर पर नजर रखना होगी, क्या इन्होंने मिड विकेट को क्लियर कर लिया है। आले हैदर जो हैं उनको भी यकीन नहीं है, इसलिए टीवी अंपायर से मदद मांग रहे हैं। फील्डर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया था, शायद गेंद पहले जहां ये आगे जाकर गिरी है। 6 रन्स ये बन जाने चाहिए। यह किस्मत की देवी भी मेहरबान है, क्योंकि जो शॉट मार रहे हैं वो मिडल हो रहा है और गैप में जा रहा है। यही क्वालिटी है जैन अब्बास की। और जब आप एक प्रॉपर कन्वेंशनल बैटर होते हैं और आप इस तरीके की बैटिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छा देखने में लगता है। जैन अब्बास 76 रन पर पहुंच गए हैं। कैसे विकेट हासिल की जाए ये सवाल है, कैसे इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए जो कि 105 रन की हो गई है। यहाँ स्मार्ट अब खेलने की जरूरत है जैन अब्बास को। उम्मीद करते हैं कि ये थकेंगे नहीं। दूसरी जानिब शहजाद जो है वो खासा मुकाबलापन था, और ये देखिए ये उतनी ज्यादा एलिवेशन नहीं मिल सकी, लेकिन अहम बात थी कि गेंद गैप में गई। बहुत बार हमने देखा है कि एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद जब एक विकेट गिरती है तो अपने साथ 2-3 विकेट्स ले आती है। इसीलिए इस पार्टनरशिप को मैं कहता हूं कि लंबा जाना होगा। अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ। अभी भी 82 रन हैं 62 बॉलों पे। शहजाद और मेहरान दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप के टीममेट्स हैं। जाहिर है कि इनको इससे पहले अच्छी तरह खेल चुके होंगे। नेट में मेहरान मुमताज को मोहम्मद शहजाद जो हैं इस वक्त उनका काम यही है कि वो स्ट्राइक देते चले जाएं जैन अब्बास को, जिनकी बाउंड्रीज लग रही हैं। फिर उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद चली जा रही है विकेट कीपर के पीछे। तकरीबन लॉन्ग स्टॉप पर जब पहुंची 2 रन लेग बाई के मिले। इस तरह 12 रन पर ये ओवर इख्तिताम को पहुंचेगा। 10वां मजमूई स्कोर है 110।
What a partnership this turning out for ATF Southern Punjab. 109. Shehzad and Zan. He's been exceptional today. Taking on the ballers, playing all over the ground. 39 deliveries, 77. Still going strong. Conceded 18 runs in his first over, Zaman Khan. He's joined the playing 11. A lot is expected from him. Two batsmen who've understood their roles. Very soon, Shehzad realized that this is Zain's territory, so he's got to just play that support role. He's scoring at around 120 strike rate, 28 of 23, but look at Zain, 77 of 39. He's taken the charge. In ATF Southern Punjab, I don't even want to say off to a flyer. They've skyrocketed. They've covered up those damages that were created in the last 5. For them, when they were bowling, 79 were given away. So they've taken that back with interest. It looked like they had a very clear mindset. Weren't planning anything ahead of their game, ahead of overs. Then whenever there was a loose delivery, he went after it. Good intent and great execution. It's all set now. Need to capitalize on this opening partnership. That should be out. That should be out. Yes, it is. You can hear the thud on the pad. It's bang in front, and that's the first wicket. Shehzad's got to go. Zaman Khan getting a breakthrough at the right time. Shuffled backwards, and then he realized he wanted to exploit the leg side. Couldn't really get any connection. The bat was very close to his body. No problems in deciding this against Shehzad. He goes for 28. ATF Nelson on board, 1 down. Captain walks out, Salman Ali Agha, breaking the partnership of 111, equaling the previous best in this tournament between Abdul Wahid Bangalzai and Shan Masood. Both were 111 for any wicket. Salman's having lack of runs, and this is the moment where he can feel a little relieved, but not too much. His partner is going great guns, so he can hide in his shadow and somewhere get his eye in. But he cannot be the burden on the man who's scoring more. So you're not allowed to absorb dot balls here. Yeah, that's more like it. Try to get to the non-striker straight away off the mark, so the momentum carries on. Here's the wicket. Pull straight on to the knee roll. Nelson proving unlucky for ATF Southern Punjab. Good comeback from Zaman Khan. That's where you expect him to make his mark. Bowling their jokers, slow ones with some pace. ATF Southern Punjab's captain Salman Ali Agha. He's, of course, a frontline batsman for them. He's playing as a batsman. He's got 9 runs in the tournament. And he's got 9 wickets. So, I think he's just swapped roles here. Fine, if you're not getting anything with the bat, contribute with the ball. Best figures by any captain in Pakistan. As I mentioned earlier, 3 overs, 5 for 10.
78 of 41. That's one exceptional innings from Zain. The work still not done. The well-spread field, if we talk about what role Salman should be opting. We'll come back to that. 11 gone, ATF Southern Punjab, 112 for 1. Highest opening partnership in National T20. Right up there. 111 Zain Abbas and Mohammad Shahzad. On second, it's Sahibzada Farhan and Mohammad Haris for KP. Again, 82 for these two. Hasibullah and Asad Shafiq for Balochistan, that was 62. And 57 again from Hasibullah and Asad Shafiq. But this is one brilliant partnership. Chasing a total. They've set the tone really well. Outclass Northern's bowling attack. ATF Southern Punjab have the cushion, and that is of the runs required. So 10.12 is the current and required is 8. That's the cushion. Just around 8.5. They can't afford to, like I said, have overs with less than 8 runs, because then that just puts pressure on you. You don't want to rebuild and work hard again. In the air, catches the call. If that's taken, there's trouble. What a catch. What a catch. No, he's saying no. He says he's not sure he's dropped it. I wouldn't even say dropped. That is a marvelous effort. Once it touches the fingers, you gotta put it as a drop. Well, that was a good effort from Zaman. That would have been trouble for ATF Southern Punjab. Brilliant effort. They picked it little late for his comfort, and that's why I had to put in the dive to cover it. That's unlucky. 100% effort, but really couldn't get his hands underneath it in time. He did had some fingers, but just rolled out. Well bowled. Aja. Nice placement. They can easily get 2. Lot of work for sweeper cover there. To cover a lot of ground to his left. That's the effort, the attempt. Just a little to react, and then had to rush. And straight away he said, hasn't done it cleanly. It would have been a great breakthrough for Northern. It will take some quick-witted captaincy from Umar Amin now. We've got Salman walked in just to put some pressure back at ATF. He's cutting the ball from in front of the stumps. Trusting his hand-eye coordination. Bounce is trustable. As you never try to cut anything from in front of the stumps. He has a lot at his plate, on his plate rather. Probably just try to create some pressure on Salman Ali Agha, keeping Zain away from the strike. Very proactive, setting the field. Probably just try and block their singles. Ali Salman would hardly go after it. Oh, there was a chance. Chance, yes, it's gone. What a mistake. He's run the captain out. The captain was watching the ball and Zain was standing right next to him. Why are they committing a suicide? The captain already in lack of runs. He's absolutely unhappy. He's got the right to. Poor running, literally poor running. He was ball watching. He could have said no, loud and clear no. And he wouldn't have to walk back to the dugout. I mean, look at that, good collection. He's not even in the frame.
That's poor from Salman Ali Agha at a very crucial moment. That's exactly what Northern needed. If it's not your run, you're not comfortable, say aloud no. That's out. And they lose the second. And Salman Ali Agha has to walk back with 5 to his name, and it's 118 for 2. सर ओवर हो गया That's right, 1 leg. And another left-hander comes and joins. Zain, Zishan Ashraf. 65th game for him. He too needs to get some runs going for himself. Straight away off the mark. Well, in fact, he's not off the mark. He's already playing. But the non-strikers, look at this. Ball watching. It is Zain's call, isn't it? He stood up, he took a start, and then again watched the ball. Cannot blame Dan for that. But that's exactly what Northern wanted. A blunder from ATF Southern. Let's have a look at that run out again. So the mistake from Salman Ali Agha is he's ball watching, but he did not commit the second mistake, and that is to send Zain back. He knew Zain is batting marvelously well. He's got 180 strike rate, so you cannot get him out. So he had to leave his crease, making sure that Zain stays out there. So this is the first mistake. He's watching the ball, then he has to leave. He cannot send him back. He can be angry, but it's a good call from the captain. What would you say if someone runs you out like that? Back in your day? Don't hide it, because I have done commentary for women's cricket. It's never a pretty sight. Obviously, you get angry, but again, given the fact that what situation was, at times you do have to sacrifice. But communication is very important. In ball watching, that is the first suicide for them. So when you were in the dressing room and being the senior out there, were you a bully to the youngsters? Just you know, like when you enter from school to college, some ragging, some stuff like that, winding the youngsters up, telling them this is how it's done. I was a bully with a bat. At times, maybe as a captain, leading my side, but not that much. I supported youngsters a lot. I was a patient person. Catch it is the call. This should be taken. It's high in the air, and yes, it has. Now Northern can breathe a sigh of relief. But has the game slipped already? We'll have to wait and watch, but this is a knock to remember. 81 of 45. Northern had no answer until Ahmed Jamal comes in and finally gets him to the dugout. Ahmed Jamal shining with the bat first, and now giving an important wicket. All they wanted was Zain to walk back, and that's exactly what they've managed to done. Zain Abbas, magnificent 81 of 46. He did set the tone, but unfortunate to go back. ATF Southern Punjab 121 for 3.
Sharoon Siraj, the new batter in after dismissal of Zain Abbas. 6th game. He's shown some flashes of brilliance. He looks good. He's got the shots. He's at the non-strikers. Yeah, that's nowhere near the bat. Not out. Go on. End of the over. 13 gone. 121 for 3. Same field है जो उस पे थी. The equation still within reach for ATF Southern Punjab. P7 required of 42. Sharoon has been decent with the bat. They've got Ilyas as well. He's a very handy cricketer. He's proved himself to be. 2 overs 24 for Sohail Tanveer. Tightening the screws a little bit more, Northern. Northern trying to put more pressure with the experience of Sohail Tanveer. Extract a good over or two here, put pressure and get that required rate going up. See how 2 wickets matter, Marina. Now suddenly the required run rate is 9.5 from 8 and the current has slipped down from 11 to 9. Couldn't really manage to get underneath it. Would have loved to go a little bit squarer than he ended up. Scooped it towards long on. He's played his part, couldn't really finish. But now the people following, the players, they do have a reputation. They can win this game. This can be the turning point of the game because both the batters on 1 each, brand new. They've hardly faced any deliveries. So this is the moment where Northern can take control of the game. Even if they don't get wickets, they can increase that required run rate. Force an error. Right now, Sharoon and Zishan should have a plan. Keep rotating strike, and every now and then they will get few deliveries or an over to target to. They cannot afford dot balls now. Whilst Redfield have got plenty of pockets to get runs from. In the air, catch it as a call. He's messed it up, has he? Or it's gone all the way, yes. There is that loose ball that Marina was talking about. You'll get an opportunity in an over. Otherwise, keep rotating strike. He's the key now, Sharoon. Picked up the length very early, had ample time to put enough bat to get that maximum. So Sohail Tanveer definitely missing the mark. He likes to rock back, stays into crease, and he's one to watch with the bat. No, it's going down. It's going down. Good call. Vicious appeal from Sohail Tanveer. Very ambitious. They're going after everything, Northern. You need another set of stumps for an LBW for that. Nine so far, 2 deliveries to go. That's the runs you're looking for, the required 9.1. The rest are the bonus from this over. Not a bad over. This, apart from that 6, Sohail Tanveer's kept it tight. 9 all up till now in the over with 1 ball to go. Don't forget, 188 is to win. They are 58 away from that and got 37 balls. The equation favors the batting side with 7 wickets in hand. Unless someone can pull up an over with a wicket
right now. $130 for 3 after 14. Delighted to see all these kids coming in, watching cricket. They're hooting, I'm not sure for which team. 80th Southern Punjab dugout, they've got Hassan Khan, Ilyas to come in. Lakram too. Zain Abbas's knock has given such a nice, strong cushion to 80th Southern Punjab after 14 overs. Northern were 97 for 4, and these guys are 33 ahead. 130 for 3 at the moment. That's a big margin in T20. But they also know that 79 was scored in the last 5. They almost replicated it in the first part of the game. They conceded a lot of runs in the end ones. Is down on one knee and plays that shot to the right of the fielder in the deep. Ahmed Jamal, is it? No, Nawaz. A couple added to the total. Nasser Nawaz putting the hard yards in to contain that boundary. It was way outside off stump, there to be hit, but really couldn't pierce the gap. He'll get an opportunity to find a boundary. It's the dot balls, that's where they need to be very focused. Can't allow that. Good shot. Mid-off was up, so he can afford to play that. But has he got underneath it? Oh, wow. Wow, what a catch. Omar Amin has pulled off a blinder. I thought it's been cleared very easily. Look at him run backwards from the edge of the 30-yard circle. He has taken that wicket. It's not Ahmed Jamal's wicket for sure. Talk about commitment. Talk about leading from the front. Omar Amin, he ran all the way back, almost to the boundary. That is one exceptional catch, an important one too. They will for sure have a look. The umpires are going up and the soft signal is out. But talk about an effort Omar Amin has pulled. Yeah, good thing about him is when he saw the ball going over him, he gave it a sprint and got into a position where he was underneath the ball. It's just the ball swirling away. We're checking the no ball here. The ball swirling away had Omar Amin diving at the last moment. But that's the key, get in good positions. What a catch this is. It's one of the best catches in the tournament. Look at where the ball lands, or had he dropped it, where would it land? Just one bounce into the fence. That's surely a wicket that belongs to him. So the umpire up in the room will give us his official call. And it's out. It's gotta be. This kind of fielding can change the game in favor of Northern. Sharon Siraj goes for 9. It's now 132 for 4. Northern just pulling the game back, flipping the table. They've managed to bag 4 wickets in 25 deliveries. That's some turnout. They were 109 for no loss after 10 overs. They've lost 4 wickets over 25 runs, 25 balls rather. Look at that shot. He thought he's cleared everything. Omar Amin has shown
That's how it's done. Brilliant catch. It just these catches lift the game up, not just the side. It just lifts the game up. Could see in his sprint and commitment what this wicket meant. Very important to put away Sharoon back. He's done that. Brilliant effort. So if you do the comparison now, we've been telling our viewers that Northern scored 79 in their last 5. ATF Southern Punjab in their last 5 would require, well, if they don't score any run now, 54. It's never easy. The ball kept traveling away from him. Running back over your shoulder, you have to keep an eye on it. Sheer commitment. Oh no! Sohail Tanveer at short cover. Amir Jamal is changing the game. He gets his third, and ATF Southern Punjab are falling like dominoes now. Dishan Ashraf, he's the one to walk now. Troubles continue for ATF Southern Punjab. Trouble continue for Dishan. That's a very soft dismissal. Just the length and the angle did the work for Amir Jamal, and a straightforward catch for Sohail Tanveer. Have a look at the expression. It says it all. Another one down. ATF Southern Punjab, 134 for 5. हसन खान चले आते हैं खेलने के लिए। और मैच में एक ड्रामाई तब्दीली आई है। 111 रन्स पर कोई विकेट नहीं गिरी थी। ओपनर्स धज्जियां उड़ा रहे थे नॉर्दर्न की बॉलिंग की, और फिर अगले 23 रन्स में 28 गेंदों में आधी टीम निपट गई। तो अब दबाव जो है वो आ गया है ATF सदर्न पर। एक बार फिर 2 नए बैट्समैन विकेट पर हैं जिन्होंने एक गेंद भी नहीं खेली अभी तक। उठाकर खेला मिड ऑफ के ऊपर से, 4 रन्स बन जाएंगे। एंगल को काम में लाए उस्मान शिनवारी के इमरान रंधावा, जो जारहाना बैटिंग करना जानते हैं। ये मैच में अभी जान बाकी है। उमर अमीन के कैच ने बिल्कुल मैच का पांसा पलट दिया, और ऐसे कैचेस अक्सर ऐसा किया करते हैं। रंधावा जो है काफी अहलियत वाले बैट्समैन है। इस दफा एंगल मिल गया उन्हें, और बेखौफ स्ट्रोक था। उनकी सिर्फ दूसरी बॉल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शिनवारी को आड़े हाथों लिया। हाफ वॉली नहीं थी, ऑन दिया, ऊपर से खेल के 4 रन हासिल किया ये, और मुकाबले को जिंदा रखा है। 50 रन मजीद चाहिए 29 गेंदों पर। यहाँ एक हौसला अफजा अमर ये है कि 30 रन आगे है 15 ओवर्स की अगर बात की जाए ATF सदरन अपनी हरीफ टीम से। बैक साइड में विप किया, एक ही रन हाथ लगेगा इमरान के। ये आमिर जमाल का पिछला ओवर। ज़ीशान अशरफ बुझे बुझे से दिखाई दिए इस टूर्नामेंट में। विकेट के पीछे भी उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, और विकेट के सामने भी। इस मर्तबा टीम को जरूरत थी इस इनिंग्स की, और आमिर जमाल की दाद देनी होगी। आखिरी 5 ओवर में जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की वो भी, और अब 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। एक रन आउट भी उनके हिस्से में आया, तो जरूर इस मैच में बहुत ही मानीखेज उनका किरदार रहा है। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर के तौर पे अपने आप को दिन ब दिन मनवाते जा रहे हैं। उमर अमीन इस वक्त डीप मिड ऑफ पर हैं। उनका जो कैच था वो न सिर्फ ये कि
उससे मैच में ड्रामाई मोड़ आया, बल्कि जो मुखालिफ टीम के सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन थे वो उनसे भी छुटकारे का बायस बना। शारून सिराज मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी थे जो इस इनिंग्स को फिनिशिंग टच दे सकते थे, और ऐसा लाजवाब कैच नेशनल T20 कप की तारीख में शायद ही देखने को इससे पहले मिला हो। मैंने जाक कैलिस को शारजा में कैच लेते हुए देखा था। इमरान नज़ीर का वो जो सह अफ्रीकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था, जो हंसी क्रोनिया का आखिरी इंटरनेशनल मैच था, पीछे की तरफ दौड़े थे मिड ऑफ से, इसी तरह स्लो डिलीवरी थी, इससे ऑफ साइड में फोर्स किया और 2 रन ले जाएंगे। जी बिल्कुल, और नेशनल T20 कप की तारीख में भी जबरदस्त कैचेस देखने को मिले हैं। रिजवान का कैच भी याद होगा चंद बरस कबल, असद शफीक, अहमद शहजाद। जो इस कैच की खास बात थी उमर अमीन के कैच की, ये पीछे को भागे थे, और ये काम आसान नहीं होता। आप आगे की तरफ या साइडवेज तो भाग सकते हैं, लेकिन पीछे भागकर इतना फासला कवर करना और फिर आखिर में फुल लेंथ डाइव, इस तमाम मरहले में गेंद पर नजर रखना, बहुत ही गैर मामूली कैच था ये। यहाँ जो कहा जाता है कि आप कैच लीजिए मैच लीजिए, ये उसी की ही एक जीती जागती मिसाल थी। उंगलियों को आखिरी मौके पर बिल्कुल फेर दिया इस गेंद पर उस्मान शिनवारी ने, और ये वो कैच है शारून सिराज की, बहुत जबरदस्त बैकलिफ्ट थी, ज्यादा ताकत नहीं हासिल कर सके, लेकिन ये उमर अमीन का जो अंदाज था गेंद पर नजर रखने का, और उसके बाद आखिर में डाइव लगा। देखिए आप बिल्कुल गेंद को आखिर वक्त तक देखते रहे। किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आप सीखना चाहें इस तरह के ऊंचे कैचेस करना, तो इससे अच्छी मिसाल आपको टेक्निकली मिल नहीं सकती। कप्तान ने यहाँ फ्रंट से लीड करके दिखाया, आई मिस सेंचुरी स्कोर की, और उसके बाद एक ऐसा कैच उन्होंने लिया फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, ये मैच का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। अच्छा शॉट खेल दिया 4 रन के लिए। गेंद कतई तौर पर अच्छी नहीं थी। उस्मान शिनवारी ने ये ओवर चौके से शुरू किया, चौके पर ही ये खत्म भी किया। 147 पर 5 ATF। नॉर्दर्न के 120 रन पर 5 खिलाड़ी आउट थे। ATF सदर्न पंजाब इस वक्त 147 रन 27 रन आगे है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मायने इसलिए नहीं रखते कि नॉर्दर्न ने अपनी इनिंग्स का बहुत शानदार अख्तिताम किया। अब जो इक्वेशन है वो 24 पे 41। और अमीन के कैच की बात कर रहे हैं, उसके मैच पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हसन खान और इमरान रंधावा दोनों बहुत ही काबिलियत और अहलियत वाले खिलाड़ी हैं। खुसूसन ये सूरत हाल उनके लिए भी टेलर मेड है। मैच बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक आखिरी उम्मीद हो सकते हैं जिस तरह की बैटिंग फॉर्म में है। एक रन का और इजाफा, 24 गेंदों में 41 रन ये बन जाते हैं आज कल की क्रिकेट में। लेकिन इस मैदान में अभी तक हमने यही देखा है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जल्दी हौसला हार जाती हैं। आपके पास मौका है, किंगडम वैली के आप फेसबुक पेज पर जाइए और इनामात आप जीत सकते हैं। अगले विनर आप भी हो सकते हैं। विजिट कीजिए इस फेसबुक पेज को। एक और कटर। तो थोड़ी सी जो टूर्नामेंट की तारीख है वो भी ATF सदर्न पंजाब के खिलाफ ही है, क्योंकि जो बेहतरीन स्कोर है दूसरी बैटिंग में जीतने का या हाईएस्ट केस जिसको हम कह सकते हैं वो सिर्फ 155 है, जो कि KP ने बनाया था सिंध के खिलाफ। ये रिकॉर्ड एक बनाना होगा
अगर वो ये पहुंचते हैं इस हदफ तक एटीएफ सदर्न पंजाब। दिलचस्पी की बात ये होगी कि देखना पड़ेगा नॉर्दर्न के पास ऑप्शन क्या है इस वक्त बॉलिंग के। इस ओवर के बाद 3 ओवर बचे हैं। उठाकर खेल दिया, फील्डर पीछे रह जाएंगे। कोशिश जरूर की और तकरीबन पहुंच चले थे। मेहरान मुमताज, जो कहा जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। उमर अमीन ने अगर लॉन्ग ऑफ पर कैच जा लिया था तो इस बार लॉन्ग ऑन से आकर एक और विकेट तकरीबन दिला चले थे मेहरान मुमताज। बहुत ही आला कोशिश। कितने फिट हैं ये नौजवान खिलाड़ी। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त कोशिश थी। ये आसान नहीं होता और इसमें खतरा भी लाहक होता है। बॉल के बाउंस को आप मिस रीड करें तो वो बॉल आपको लग भी सकती है, लेकिन मेहरान ने अच्छी कमिटमेंट दिखाई। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बाकी उनके ट्रूप्स भी बिल्कुल उनका साथ देते हुए। इस सामने शॉट लगाने में दिक्कत हो रही है दोनों ही खिलाड़ियों को। बिल्कुल बॉल आपके पाले में नहीं है तो सामने हिट नहीं लग रही और इसी वजह से इमरान रंधावा को सिंगल पर ही इक्तफा करना पड़ा। 4 रन आए हैं इस ओवर में। अभी तक बहुत अच्छा ओवर है। बगैर बाउंड्री के अगर फिनिश करते हैं तो ये अच्छा ओवर होगा। आमिर जमाल का 3 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने 20 रन देकर। अभी तक 2 गेंदें उनके स्पेल की बची हैं तो वो तो आखिरी 3 ओवरों का हिस्सा नहीं होंगे बॉलिंग क्रीज पर। और ये अच्छी आई है गेंद बल्ले पर और ये मैदान बदर भी। एक बड़े शॉट की अशद जरूरत थी एटीएफ सदर्न पंजाब को और जो ही लेंथ मिली और गेंद लेग स्टंप के बाहर मिली, ये कर दिखाया भी। थोड़ा ज्यादा लाइन सीधी थी और उसको एंगल के साथ खेलने का मौका मिल गया इमरान रंधावा को। बल्ले के बीचों बीच गेंद सीधी अजहर महमूद इनक्लोजर में जाकर गिरी। एक ही बड़ी हिट चाहिए ओवर में एटीएफ सदर्न पंजाब को और वो हिट इन्होंने इस ओवर में हासिल कर ली है। इंपॉर्टेंट होगा कि रंधावा और हसन पार्टनरशिप को बरकरार रखें। 10 रन आगे हैं ओवर में और यही इस वक्त की जरूरत थी। 31 रन बचे हैं बाकी 3.1 ओवर्स में। ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं, हसन खान और रंधावा। एक और पुल शॉट, गेंद आई नहीं बल्ले पर। दूसरे रन के लिए वापस आना चाहेंगे और दोनों ही खिलाड़ी क्रीज छोड़ चुके थे और रन आउट हो गए। हसन खान, जिनको ज्यादा रिस्पांस मिला नहीं अपने बैटिंग पार्टनर की तरफ से और जब अपनी क्रीज में उनको पलटने के लिए कहा गया क्योंकि मुंह मोड़ लिया था इमरान रंधावा ने, एक कदम उनकी जानिब देखकर वापस आने की मोहलत दी नहीं विकेट कीपर ने। मौके पर ऐसा लगा कि 2 रन के लिए तैयार थे, रंधावा मुड़े और यहां पे वो कंफ्यूजन हुई और हसन खान बिल्कुल भी अपने पार्टनर से खुश नहीं थे। मुश्किल थ्रो थी रोहेल नजीर के लिए, स्क्वायर पर पिच हुई लेकिन प्रेशर अच्छा बनाया नॉर्दर्न ने और उसी प्रेशर के नतीजे में हसन खान को अपनी विकेट से हाथ धोने पड़े। सदर्न पंजाब 158 पर 6। कल के मैच में नंबर 4 पर मोहम्मद इलियास बैटिंग करने के लिए आए थे। बड़े उम्दा स्ट्राइकर हैं लेकिन क्या वो ये दबाव में यहाँ पर अपनी जो स्ट्राइकिंग सलाहियतें हैं उनका इजहार कर सकते हैं। इस वक्त दूसरे एंड पर हैं और रंधावा ये बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं और अगर इतनी खराब गेंद होगी तो फिर उनसे रहमदिली की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए। आज अच्छी लाइन और लेंथ को इख्तियार नहीं किया है। रस्टी लग रहे हैं जमान खान।
रंधावा को देख लेना चाहिए था कि ये एंगल उनके काम का है। पिछले ओवर में भी इसी तरह की गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। अभी भी इन स्विंग एंगल को जल्दी पिक कर लिया। फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर हो, बिल्कुल ये एक फ्री हिट बन जाती है। और जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, सलमान अगर अच्छी लाइन पे बॉल करें तो वो रंधावा को यहाँ पे मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन चौके के साथ जब भी ओवर का आगाज होगा इस सिचुएशन में बॉलर पर बेइंतहा प्रेशर आ जाएगा। उस्मान शिनवारी को अब मिड ऑन पर लाया जा रहा है, लेकिन इरादा यहाँ वो तर्क कर दिया। उमर अमीन ने उनको वापस जाने को कहा। फाइन लेग को अब आगे लाया गया। भाई रिवर्स स्विंग हमने देखी है पहले मैच में, वही करने की कोशिश की। अच्छा शॉट और मिस फील्डिंग पर दूसरा रन इस बार बन गया। मर्तबा यॉर्कर की कोशिश की थी, लेकिन बॉल इस मर्तबा स्विंग नहीं हुआ और हाथ खोलने का मौका मिला। ये रनिंग देखी, यहाँ पे हसन खान मुड़ के देख रहे हैं। रंधावा ने बुलाया उन्हें, यहाँ पे गलती इमरान रंधावा की कहलाएगी, लेकिन उन्हें बुलाकर बिल्कुल वापस कर दिया। फिर रोहेल नजीर के पास काफी वक्त था और इस चीज का एहसास हुआ रंधावा को। क्योंकि हसन खान ने तकरीबन ब्लाइंड टर्न लिया था, उनकी नजर जो है गेंद की बजाय रंधावा पर थी, जो अपनी क्रीज छोड़ते हुए आ रहे थे डेंजर एंड की जानिब। यहां पर कैच आउट हो जाएंगे उस्मान शिनवारी, उनने उम्दा कैच लिया और इस तरह रंधावा अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। जमान खान ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। विकेटें वक्फे वक्फे से गिरती रही हैं ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद, और इस बार 7वीं गई। स्लोर डिलीवरी थी। रंधावा को यहाँ थोड़ी सी गेम अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी। 6 रन 2 गेंदों पे आ चुके हैं। विकेटों की इंपॉर्टेंस जरूर अपनी जगह बरकरार है। हर बॉल पे आप ऊंचा स्ट्रोक कैचेबल हाइट पे नहीं खेल सकते और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। रंधावा जिस अंदाज से खेल रहे थे वो मैच को फिनिश कर सकते थे, लेकिन अपनी गलती के सबब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। नॉर्दर्न की फिर वापसी हुई। ATF सदर्न पंजाब 164 पर 7। सर लेग स्टंप 1 लेग। 111 की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद ATF सदर्न पंजाब की बैटिंग बिल्कुल पसपा हो गई। और अब खासा मुश्किल होगा, एक एक रन के लिए खासे पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। दूसरी मिस फील्डिंग इस ओवर में देखी गई। हुरारा हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर। ओवर के आगाज में उन्होंने अच्छी फील्डिंग की थी, इस मरतबा प्रेशर में आ गए, लेकिन ये एक अच्छा शॉट नहीं कहलाएगा। रंधावा ने बिल्कुल उनका बैलेंस भी नहीं था, अपनी शेप भी खो बैठे। ज्यादा जोर से हिट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट का नुकसान किया। बहुत देर से कोशिश कर रहे थे ये शॉट खेलने की। कई बार गेंद जो है फील्डर्स के दरमियान गिर रही थी, कई बार बॉलर के सर के ऊपर से पीछे गिरी। यॉर्कर करने की महारत में ये बिल्कुल यकता है। आखिरी ओवर्स में नौजवान खिलाड़ी जमान खान आज ज्यादा अच्छा नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त अच्छा रिदम है। ये जो कोचेज हैं एजाज चीमा और उनके साथ शाहिद अनवर आज परेशान होंगे। कल बदकिस्मती थी, जाहिर है कि 5 ओवर्स का मैच था, उसमें जो है कोचिंग का ज़्यादा अमल दखल रहता नहीं, लेकिन आज उनको मायूसी हुई होगी। एक इतनी अच्छी इब्तिदा के बाद उनकी जो टीम है वो मंजिल के बहुत पास आकर पटरी से उतर गई। और इस बार ये गेंद मंजिल पर पहुंच जाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर सिर्फ बल्ला लेकर जाना था। थर्डमैन के फील्डर जो हैं वो बर वक्त गेंद की तरफ नहीं जा सके। सुहेल तनवीर
एक लोअर ऑर्डर बैटर से ज्यादा समझबूझ का मुजाहरा किया इलियास ने। स्लो डिलीवरी थी लेकिन गेंद पर नजर रखी, पेस का इस्तेमाल किया, अच्छा डिफ्लेक्ट किया गेंद को। इंप्रूवमेंट नजर आई है उनकी बैटिंग में और ये बर वक्त चौका हासिल किया ओवर के इख्तिताम पर। 2 ओवर्स में 17 रन बचे हैं, 171 पर 7। एक ग्रीन रूम से बाहर आ गए हैं अली यूनुस, उनके साथ मरीना है। आमतौर पर दिन के इस वक्त अली यूनुस जो हैं वो प्रोग्राम अपनी शाम का तरतीब देते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सारी तवज्जो इस मुकाबले पर है। वो शाम के वक्त रनिंग करते हैं, फिल्म देखने का भी शौक है। और गेंद हवा में और उसके बाद हाथों में। आमिर जमाल आज हर तरफ नजर आ रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग और अब डीप फील्डिंग में भी। एक और विकेट एटीएफ सदर्न पंजाब के हाथ से गई और अब शायद ये मैच भी। बिल्कुल और बिल्कुल सूरज की मुखालिफ सिमत में देख रहे थे आमिर जमाल। इशारा उन्होंने किया कि शायद उन्होंने गेंद इतना अच्छा पिक नहीं किया, लेकिन आज लगता है उनका दिन है। बैट के साथ, बॉल के साथ और अब फील्ड में भी। समीन गुल को भी अपनी विकेट से हाथ धोने पड़े। यहाँ पे फिर कहा जाएगा कि थोड़ी सी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। इलियास अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, समीन गुल को उनका साथ देना चाहिए था। और विकेटें गिरने से नॉर्दर्न की टीम बराबर मैच में वापसी करते हुए 171 पर 8। आज कबीर वाला के एक बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए सदर्न के लिए। अब कबीर वाला के एक और बैट्समैन आ गए, अली माजिद। क्या ये इस इनिंग्स को उसके सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? 11 गेंदों में 17 रन अभी भी बड़ी हद तक मुमकिन है। यहाँ अगर इस ओवर में ये 6-7 रन और बना लें तो आखिरी ओवर में बॉलर भी दबाव में आ सकते हैं, खासतौर पर इलियास की मौजूदगी में। एक ही हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा मोहम्मद इलियास को और मिस फील्डिंग पर दूसरा रन भी हासिल कर लेंगे। नजर लग गई आमिर जमाल को, इतनी तवज्जो का मरकज रहे हैं आज तमाम दिन। बिल्कुल इस क्रूशल स्टेज पे बॉल से नजरें हटा ली। ये मैच ऐसा है नहीं कि आप इससे नजर हटा सकें एक लम्हे के लिए भी। पल पल मैच की सिचुएशन तब्दील होते हुए, और यकीनन जो तमाशाई ग्राउंड में आए वो भी महसूस हो रहे होंगे और जो तमाशाई अपने घरों पर ये मैच देख रहे हैं। यहाँ क्या ये पैड लगती हुई गई थी, लेकिन अंपायर का ख्याल है कि टिकल किए बगैर गई से गेंद और एक रन भी। सोहेल तनवीर जो है खासे नाखुश हैं इस वाइड गेंद से। शायद उनका ख्याल है कि गेंद पैड से लगती हुई गई है। एक आवाज सी तो आई थी, क्या बल्ले से लगी थी? वाइड तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चेस में शक है कि बल्ले से लगी या पैड से, लेकिन डिफ्लेक्शन जरूर थी यहां पर। एजाज अहमद जो हैं ये भी इस सूरत हाल से कदर नाला नजर आते हैं, लेकिन उमर अमीन और एजाज अहमद की टीम ने फाइट बैक आज कमाल का किया है। क्योंकि एक मौके पर लगता था कि ट्रेन छूट चुकी है।
और ये अच्छा खेला और उतनी आला फील्डिंग ये हो सकती थी, लेकिन नजरें हटा ली आखिरी मौके पर। एक्स्ट्रा कवर पे फील्डिंग जो है नॉर्दर्न के लिए काफी मुश्किलात का बायस बनी है। पिछले ओवर में हुरैरा बॉल रोकने में नाकाम रहे। इस मर्तबा उमर अमीन थे। अमीन गुल आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी। हर खिलाड़ी यही कोशिश कर रहा है कि मैं छक्का लगा कर मैच को फिनिश कर दूं। थोड़ी सी ज्यादा समझबूझ की जरूरत थी। इन मैचेस में मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है, गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर जब मैच इतना टाइट आ जाए। इस बार गेंद उठ गई है और दो फील्डर माइल हो रहे हैं और ये एक और लाजवाब कैच, सनसनीखेज कैच उस्मान शिनवारी ने लिया और इस तरह अपनी टीम को जीत के एक कदम और करीब कर दिया। और ये शाम जो है कैचेस के एतबार से रावलपिंडी में याद रखी जाएगी। मोहम्मद इलियास जो खतरा बन सकते थे, आखिरी खतरा, उनसे छुटकारा पा लिया इस कैच की बदौलत। स्लो डिलीवरी थी सुहेल तनवीर की, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। शिनवारी ने हमतन बॉल पर नजर रखी और आखिर में जो डाइव लगाई उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी कोनी जमीन पर ना लगे और बॉल उनके हाथों में ही रहे। जैसे ही वो रोल ओवर हुए, इसका मतलब है इलियास की वापसी होगी। इलियास खतरा साबित हो सकते थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जब तक विकेटें गिरती रहेंगी नॉर्दर्न की वापसी होती रहेगी मैच में। और शायद अब ये फैसला कुन लम्हा था इस मैच का। 176 पर 9। बैकफुट पर खेला और उसके बाद झिझक से दौड़े और सुहेल तनवीर ने ओवरथ्रो के रन्स बचा लिए। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और विकेटें गिरती चली जा रही हैं इन आला कैचेस की बदौलत। उस जमीन पर उस्मान शिनवारी गिर गए थे, लेकिन उनकी कोनी लगने के बाद भी गेंद हाथ से नहीं निकली। यही उनकी कामयाबी का राज भी था। तो आज उम्मीदें पूरी हुई नहीं, क्योंकि दबाव में रन चेज में बैटिंग करना ये बिल्कुल मुख्तलिफ गेंद का खेल बन जाता है। इसका एहसास हो गया होगा मोहम्मद इलियास को। पहले बैटिंग करते हुए हिटिंग कर रहे थे खुल के। बिल्कुल, जब जीत इतनी करीब हो तो उसका अपना ही एक प्रेशर होता है। भाई ऐसे क्लोज मैचेस देखें जो इसी प्रेशर की वजह से चेजिंग टीम के हाथों से निकल जाते हैं। इन्हें को अजीब लगता होगा, लेकिन जो जो जीत करीब आती है उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। एक गेंद बचानी होगी फैसल अकरम को, अली माजिद को मौका देने के लिए। हवा में खेल बैठे हैं, फील्डर पहुंच रहे हैं और ये कैच गिर गया। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे, आना चाहते थे लेकिन इसका मौका दिया नहीं। मोहम्मद हुरैरा आज लगता है गेंद इनका पीछा कर रही है। 12वें खिलाड़ी के तौर पर मैदान में थे, आखिर में अच्छी कोशिश की। 178 पर 9। हुरैरा यार एफर्ट तो कर, पूरा बॉल पे तो आ, स्लो मोशन आ रहा है। बहुत ही सनसनीखेज मैच और अभी मैच में जान बाकी है। फैसल अकरम ने भी बाकी लोअर ऑर्डर बैटर्स की तरह इस बात का बीड़ा उठाया कि शायद वही बड़ी हिट मार के मैच को खत्म करें। यहाँ पे हुरैरा मुसलसल एक्शन में है, वो हसन नवाज की जगह फील्डिंग कर रहे हैं जिन्हें इंजरी हो गई थी और मर्तबा भी कैच तो ना ले सके, लेकिन ज्यादा नुकसान होने नहीं दिया। 10 रन बचे हैं आखिरी ओवर में। यहाँ जमान खान जो है उनके नाम कुर्रा निकला है आखिरी ओवर करने का। उस्मान शिनवारी का भी एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ज्यादा एतमाद है क्योंकि जमान खान का ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है पीएसएल में भी रन्स बचाने का। इन्होंने लाहौर कलंदर्स को कामयाबी दिलाई थी
इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में। वासिफ अली को इन्होंने आखिरी ओवर में हिट आउट नहीं करने दिया था। ये कैसी फील्ड तारिक, अच्छा आप थर्ड मैन को पीछे कर दिया है क्योंकि जमान खान यॉर्कर करेंगे और आप फैसल अकरम को थर्ड मैन और फाइन लेग पे बाउंड्री देना नहीं चाहते, अब थर्ड मैन को पीछे भेज दिया है। और गेंद दूर ले गए, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा। टेलंडर के लिए मुश्किल हो जाएगा यहां से कनेक्ट करना, और अगर ये कर भी सके तो थर्ड मैन पर फील्डर हैं, एक ही रन बन सकेगा। एक यहां पर एक लकी एक बाउंड्री चाहिए विकेट कीपर के दाएं बाएं से इनसाइड एज पर। ये अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर हैं पीछे तैनात नासिर नवाज। हर बार कोशिश करते हैं फैसल कि वो जाएं स्ट्राइक लेने के लिए। काफी बेताब लगते हैं कि वही इस मैच को फिनिश करना चाहते हैं। मछाइयों की अच्छी तादाद आई है, आज वर्किंग डे है। जो ही शाम के साए जो हैं थोड़े से बड़े होने शुरू हुए, ग्राउंड में स्टैंड्स में छांव आई, तो हमारे दाएं जाने वाले स्टैंड्स में तमाशाइयों की तादाद काफ़ी है और एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही क्लोज मुकाबला है, अभी भी ये किसी से जा सकता है। नॉर्दर्न को आप फेवरेट करार दे सकते हैं लेकिन ATF सदर्न पंजाब बाहर नहीं है मैच से। अच्छा यॉर्कर, रन आउट का मौका है और यहाँ फंबल कर बैठे उस्मान शिनवारी, जिसका नतीजा ये दूसरा रन हो गया। दबाव में आ गए थे उस्मान शिनवारी, इससे 2 रन बना लिए गए। अब बाकी मादा 3 गेंदों में 7 रन दरकार हैं। खुश नहीं है बॉलर, तमाम भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। शिनवारी की फील्डिंग बड़ी अनटाइडी रही, 1 रन बचा सकते थे लेकिन देखिए बिल्कुल बाउंस को मिस जज किया और गेंद के ऊपर अटैक ही करते चले गए, इसकी वजह से दूसरा बाउंस बिल्कुल उनके घुटने के नीचे लगा और दूसरा रन बनाने का मौका भी दे दिया। फाइन लेग का फील्डर दायरे में है, मिड विकेट स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर ऑन साइड पर। क्या ये पैडल कर सकते हैं? लेकिन सामने हिट लगाई, दूसरे रन की यहां पर कोशिश होगी। उमर अमीन दौड़ते हुए आए, फैसल को वापस अपनी क्रीज में जाना पड़ा। 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत, आखिरी विकेट बाकी रह गई है। एक गेंद पर भी फैसला हो सकता है छक्के या विकेट की सूरत में इस मुकाबले का। अच्छा ओवर किया है, अब तक सिर्फ 4 रन ही हैं 4 गेंदों में। जमान खान ने, यही उनकी खासियत है, वो रन्स बचाना जानते हैं फैसला कुन मोड़ पे। बिल्कुल, और एक्साइटमेंट आप क्राउड में तो देख सकते हैं। जो थ्रो आई डीप से उमर अमीन की, उसको रोहेल नजीर को बैकअप करने के लिए 3 फील्डर पीछे भागे थे। इस वक्त प्रेशर दोनों टीमों पर है, जैसे आपने कहा 1 बॉल की खेल है और इस बॉल से मैच का पांसा दोनों तरफ पलट सकता है। इससे अच्छा और सनसनीखेज मैच आपको देखने को नहीं मिल सकता। उमर अमीन आज देखती आंखों हीरो बने, अपनी टीम को वापस लाने में उनका किरदार बड़ा अहम रहा। एजाज अहमद या यहाँ फैसल अकरम हीरो बन सकते हैं। और फाइनल के ऊपर से खेला, यहां पर मौका है, सोहेल तनवीर ने इस गेंद को जाने नहीं दिया और ATF सदर्न पंजाब की टीम हिम्मत हार गई 182 पर और अपनी तीसरी विकेट हासिल की जमान खान ने। और इस तरह उन्होंने अपनी रीत को कायम रखा आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाने का। और इस तरह 111 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 182 पर पूरी इनिंग्स सिमट गई सदर्न पंजाब की और नॉर्दर्न ने मैदान मार लिया है अपने होम ग्राउंड पर। नॉर्दर्न की टीम और उनके तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत ही सनसनीखेज मैच था। फैसल अकरम का आइडिया बुरा नहीं था लेकिन एग्जीक्यूशन में चूक गए और तमाशाइयों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मैच को एंजॉय किया। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच रहा क्योंकि हाई स्कोरिंग रन चेस थी,
और ज़्यादातर वक्त ऐसा लगा कि ATF सदर्न पंजाब इस रन चेज में आगे है, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में नॉर्दर्न की बॉलिंग और फील्डिंग कमाल की रही। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस खूबसूरत क्रिकेट मैच के साथ समा बांध दिया है नॉर्दर्न की इस बॉलिंग और फील्डिंग परफॉर्मेंस ने, और कप्तान उमर अमीन बिलाशुबा दाद के मुस्तहिक हैं। जहां आज उन्होंने 2 विकेटें 6 रन पर गिरने के बाद जिस तरह एक एंड संभाला, वो इनकी टीम के लिए हौसला अफजा था, और ये वो लम्हा था जिसका नॉर्दर्न को कई दिनों से इंतजार था। सुहेल तनवीर ने इस कैच को आ लिया, और साथ साथ नॉर्दर्न ने 2 पॉइंट्स को भी, कल 5-5 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच ये टीम हार गई थी। ये दूसरी कामयाबी है इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप में मेजबान नॉर्दर्न की। इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस चेजिंग टीम 2-2 रन से हारी और 1 मैच 3 रन से, और इस मरतबा फतह और शिकस्त का मार्जिन 5 रन का रहा। बहुत करीबी मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन ये शायद सबसे बेहतरीन मुकाबला था। सदर्न पंजाब की बैटिंग लाइनअप की कहानी, पहले 2 बैटर्स ने बहुत ही शानदार आगाज मुहैया किया। 111 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जैन अब्बास पूरे जोबन पर नजर आए, नौजवान शहजाद ने अच्छा साथ दिया, लेकिन उसके बाद सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं। इमरान रंधावा ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने गलत शॉट का गलत वक्त पर इंतखाब किया, और शायद वही मैच का फैसला कुन मोड़ साबित हुआ इन आखिरी 3 ओवर्स में। यहाँ नॉर्दर्न के बॉलर्स ने कुछ एक्स्ट्रास जरूर दिए, लेकिन उनने जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, सुहेल तनवीर ने 2 विकेटें हासिल की 39 रन के एवज, और 3 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने आउट किया। वो मैन ऑफ द मैच के भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन जमान खान ने पुरानी गेंद पर एक बार फिर बड़ा ही आला स्पेल किया। फैसला कुन स्पेल फास्ट बॉलर की जानिब से देखने में आया। ओपनिंग पार्टनरशिप जैन अब्बास और शहजाद ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद जैन अब्बास का शो शुरू हुआ और फिर वो शो चलता ही चला गया। शहजाद ने गाहे बगाहे उनका साथ दिया, कहीं कहीं उनको किस्मत का भी साथ हासिल रहा, लेकिन जैन अब्बास का स्ट्रोक प्ले और उनकी शॉट सिलेक्शन काफी मुतासिर कुन थी। ये शायद उनका सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था। शनिवारी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। बिहाइंड स्क्वायर ये उनका तीसरा छक्का। शहजाद 111 तक उन्होंने साथ दिया जैन अब्बास का। स्पिनर्स को काफी इम्प्रोवाइज करके खेले, फिर कन्वेंशनली भी फुटवर्क का इस्तेमाल किया। सेटल नहीं होने दिया स्पिनर्स को जब तक वो रहे। जमान के आते ही रन्स तो बने, लेकिन उन्होंने अपना मखसूस काम किया, विकेट हासिल की शहजाद की, और उसके बाद इनिंग्स लड़खड़ाई। कुछ देर जैन खेलते रहे, यहाँ पे कैच क्लेम नहीं किया जमान ने, लेकिन यहाँ सलमान अली आगा की बुरी फॉर्म कंटिन्यू रही यहाँ पर, और बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपने साथी से। जैन अब्बास जब थकावट का शिकार हुए तो वो भी अपनी विकेट से हाथ धो बैठे, और यहाँ से कहानी पलट गई। जहाँ उसके बाद जो है ये इमरान रंधावा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये इस मैच का फैसला कुन लम्हा था। शारून का ये ऐसा कैच पकड़ा जो कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। उमर अमीन ने फिर उसी ओवर में एक और विकेट गिर गई। इमरान रंधावा जो है वो आकर धावा बोलते हुए नजर आए। उस मरहले पर आमिर यमीन की उन्होंने अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। इस दौरान फिर कैच का मौका था, महरान मुमताज ने इसकी बराबर कोशिश की। रंधावा ने हुक शॉट पर ये छक्का लगाया, और उसके बाद उनके पार्टनर यहाँ पर रन आउट हो गए। हसन खान, जिनसे अच्छी बैटिंग करने की तवक्को थी, दोनों में गलत फहमी पैदा हुई, जो कि सदरन को आखिर में महंगी पड़ी, क्योंकि रंधावा जो है अपनी इनिंग्स को आखिर तक नहीं ला सके। उस्मान शिरवारी ने लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर उनका कैच ले लिया। बाउंड्रीज जो हैं दाएं बाएं से उसके बाद भी आती रहीं, और फिर समीन गुल कैच दे बैठे आमिर जमाल को, और ये एक और मौका
मिला और ये एक और लाजवाब कैच था उस्मान शिनवारी की जानिब से। और फिर ये हुरैरा ने अच्छी कोशिश की स्क्वायर लेग पोजीशन पर और आखिर में सुहेल तनवीर के हाथों इस मैच का खात्मा हो गया और नॉर्दर्न ने सदर्न को आज पीछे छोड़ दिया है इस मुकाबले में और उन्होंने अपनी दूसरी फतह हासिल की है। शाबाश नॉर्दर्न। नॉर्दर्न ने 187 रन बनाए। कप्तान उमर अमीन, आमिर जमाल और मुबस्सिर ने अच्छी कंट्रीब्यूशंस की। समीन गुल और अली माजिद ने 3 और 2 विकेटें हासिल की। बिलतरतीब जैन और शहजाद की बदौलत ये टारगेट एक मौके पर बिल्कुल रीच में लग रहा था, लेकिन आखिर में इमरान रंधावा की कोशिश के अलावा मिडल और लोअर ऑर्डर बिल्कुल भी कोप नहीं कर सकी नॉर्दर्न की बॉलिंग और फील्डिंग के आगे। बैट के बाद बॉल से भी कंट्रीब्यूट किया आमिर जमाल ने और जमान का मैच विनिंग आखिरी ओवर भी उनकी जीत का सबब बना और नॉर्दर्न ये मैच 5 रन से जीत गई। यहाँ पॉइंट्स टेबल पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है अभी भी सबसे आगे है। 8 पॉइंट्स हैं उनके। बलूचिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। 4 मैचों के बाद एटीएफ सदर्न अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है इस कामयाबी के बाद। दरअसल वो तीसरे नंबर पर है। नॉर्दर्न की टीम जो है उनको देखा जा सकता है 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। सिंध के भी 4 पॉइंट्स हैं। सेंट्रल पंजाब ने आज अपने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मैन ऑफ द मैच कौन होगा इसका जवाब जानिएगा एक वक्फे के बाद। Welcome to the post-match presentation of match 14, this one with ATF Southern Punjab and Northern fighting it out and eventually Northern winning this one by 5 runs
We've had a good day for batters. 734 runs scored in the two matches today at the Pindi Cricket Stadium. Before I call upon the player of the match, I'm going to welcome our guest, Mr. Mohammad Waseem, Chief Selector, Pakistan Cricket Board. Thank you for joining us. Now talking about the Kingdom Valley player of the match, and that is someone who scored 47 runs of 17 balls with 5 boundaries and 4 sixes. Amir Jamal, not only that, he's also got a figures of 4 overs, 3 for 27. Overall, brilliant performance. He will receive the Kingdom Valley player of the match cash award of 25,000 and the trophy from Mohammad Waseem. Brilliant all-round performance. बात करेंगे आमिर से. आमिर, जब बैटिंग अच्छी हो जाती है तो कितना कॉन्फिडेंस जो है वो रब ऑफ होता है जब बॉलिंग मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए. और हमारा जो बेसिकली टारगेट था कि हम 160 तक जाएंगे, तो हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 160 डिफेंड कर लेंगे. लेकिन जिस तरह बैटिंग हो गई तो कॉन्फिडेंस बॉलिंग को भी मिल गया कि जी अब हम टारगेट काफ़ी बड़ा हो गया तो बड़े दिल से बॉल करेंगे. तो मतलब मिस्टेक्स हमारा ये था कि हम मिनिमाइज़ ही रखेंगे, लेकिन मिस्टेक्स का मार्जिन हमें थोड़ा सा मिल गया था, जिसकी वजह से हमने टारगेट उनको रिस्ट्रिक्ट डाउन कर दिया था. 2 मैचेस में नीचे से आपने बैटिंग में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब टीम एक्सपेक्ट करेगी कि नीचे से आप वो रन देंगे. आखिरी 5 ओवर में 79 किया टीम ने. जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा, मैं करूँगा. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने आगे जाके अपना नेचुरल गेम करना है और नेचुरल गेम किया और अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है. अपनी स्ट्रेंथ पे रहूँ तो वहाँ से एग्जीक्यूट हो गया बेहतरीन. कुछ दिन ऐसे आते हैं प्लेयर के जब बॉल पीछा कर रही होती है उसका, तो आपको विकेट भी मिल रही है, कैच भी आ रहे हैं, बल्ले पे भी आ रही है, तो ऑल राउंड सेटिस्फाइड है या आप इसमें और ज़्यादा कहेंगे कि अभी है टैंक में गैस? देखें, आज मतलब परफॉर्मेंसेस पे 1-2 परफॉर्मेंसेस पे आप सर्टिफाइड नहीं हो सकते. आपको मतलब अगर नेक्स्ट लेवल तक जाना है तो आपको मज़ीद बेहतर करना पड़ता है हमेशा, और हमेशा मतलब रूम होता है इम्प्रूवमेंट के लिए. तो इससे मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद बेहतरीन कर सकूँ. चलिए आमिर, congratulations. मज़ा आया आपकी इनिंग्स देख के. Thank you. So that's the player of the match. Now I'll invite the captain of ATF Southern Punjab, Salman Ali Agha. मैं आपसे पूछूं, गेम आपके हाथ में था, आपने शुरू से ही अटैक किया. अगर मैं चेज़ की बात करूं, और किसी भी आई थिंक कंडीशन में ऐसा नहीं लगा था कि आप रिक्वायर्ड रन में पीछे हैं, तो कहाँ आपको लगता है कि फॉल्ट हुआ है? की विकेट्स तो थी ही. ओबियसली जो पहले 10 ओवर हमने जो खेले थे उसके बाद तो मतलब रन चेज ईजी हो गया था, लेकिन हमने ओबियसली मेड सो मेनी मिस्टेक्स, और उसके बाद ओबियसली जब अपनी मिस्टेक करते हैं तो फिर आप मैच हारते हैं. तो आई थिंक जो मिस्टेक्स हमने किए हैं उसकी वजह से मैच हमारे. एज अ कैप्टन आप क्या कह रहे थे कि ऐसा फील हुआ आखिरी 5 ओवर में जब विकेट्स गिरे हैं, 25 गेंदों पे 4 विकेट्स, पैनिक बटन चला गया था ड्रेसिंग रूम में? जी बिल्कुल. ऑब्वियसली जब आप इस तरह की विकेटें लूज़ करते हैं और इस तरह मतलब इजी रन चेज हो जाता है, जब आप सारी गेम को बनाकर उसके बाद ऐसे करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर पैनिक एक ऐसी चीज़ होती है जो पैनिक मचता है. तो फिर ऑब्वियसली यंग लड़के हैं जो कि मतलब इस चीज़ से ऑब्वियसली लर्न कर लेंगे, लेकिन पैनिक बटन जरूर बचा था. अगर आप अपनी बॉलिंग पे आते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न होगा, आखिरी 5 ओवर में 79 दे दिए टीम ने. जी बिल्कुल. ऑब्वियसली बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अगर आप ये कहें कि डेप्थ में ना बैटिंग में अच्छी कर सके ना बॉलिंग में अच्छा कर सके, जो कि एक ऑब्वियसली एक एरिया है जो हमें इम्प्रूव करना है. कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैच में ये गलतियाँ दोबारा ना हो. चलिए, better luck next time. Salman Ali Agha, captain of ATF Southern Punjab. Now the captain of Northern, Umar Amin, will join us. Umar, as a captain, ऐसे गेम्स काफ़ी एनर्जी निकाल देते हैं. बिल्कुल एग्जॉस्टेड टुडे. किस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट देंगे, बैटिंग परफॉर्मेंस को आखिरी 5 ओवर में या बॉलर्स ने जो एंड में परफॉर्मेंस दी? वेल अगर आप देखें ना, आज का मैच हमारा जो बैटिंग में भी लेटर हाफ था वो बहुत अच्छा हमने फिनिश किया बैटिंग में. उसके बाद बॉलिंग में भी जिस तरह उनका 111 पे कोई आउट नहीं था, उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने कम बैक किया, तो आई थिंक दोनों शोबों में मैं क्रेडिट दूंगा. और फिर हम लोगों ने जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस किए आज फील्ड में, आई थिंक वो डिफरेंस था. आप अपना इंडिविजुअल रोल बताइए एज अ बैट्समैन. आप किस प्लानिंग से गए थे? क्योंकि आपने 50 किए आज स्कोर, लेकिन वो एक तहम्मुल के साथ खेले हुए थे, और बाकी आपने शायद लाइसेंस दिया हुआ था प्लेयर्स को कि अपने खुल के खेल. जी बिल्कुल. सिचुएशन ऐसी बन गई थी, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, तो प्लान मेरा यही था कि मैं थोड़ा सा इसको लंबा लेके चलूँ, थोड़ा सा स्टेबल करूँ, शिप को थोड़ा सा स्टेडी करूँ. उसके बाद जो दूसरे एंड पे जो मेरे साथ बैटर्स थे उनको मेरी तरफ से बिल्कुल लाइसेंस था कि आप लोगों को, क्योंकि ऑफ स्पिनर लगा हुआ था, आगा सलमान बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरी तरफ से उनको बिल्कुल लाइसेंस था कि दे कैन गो आफ्टर द बॉलर्स. गुड टू हैव समवन लाइक आमिर जमाल इन द टीम. में ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कहीं आप चाहेंगे कि लोड एक पे ना आए? जी बिल्कुल. आई थिंक दूसरे प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना चाहिए, लेकिन द वे आमिर जमाल हैज़ बीन परफॉर्मिंग इन द पास्ट 2-3 गेम्स, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है वो, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. तो आई थिंक ही इज़ द वन टू लुक फॉर इन द फ्यूचर. आई हैव टू कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट कैच दैट यू टुक.
जी बिल्कुल, जिस तरह हमेशा हम बात करते हैं कि जब आपकी टीम यंग होती है तो थोड़ी एनर्जी वो हम सीनियर प्लेयर्स को भी एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिसका वो आई थिंक वो एनर्जी की वजह से ही कैच हुआ. Kelly, congratulations. 2 points for you and Northern, and go well in the tournament. Thank you. Umar Amin, captain of Northern, and that also concludes the presentation as Northern takes this game away by 5 runs. Day of cricket we've had today. If today's action is anything to go by, we can expect some cracking games tomorrow as well. First up, top of the leader chart, Balochistan versus Khyber Pakhtunkhwa. That will be the first game starting. We'll be on air at 9:10 in the morning. Sindh and Southern Punjab will lock horns in the game in the afternoon. All this action coming to you live from Rawalpindi Cricket Stadium. Well, we had a couple of very exciting games today, and we definitely enjoyed that. I hope you enjoyed them as well. We look forward to your company tomorrow. Until then, from Rawalpindi Cricket Stadium here, it's good night. Oh, bowled him, cleaned it up. Chance, and alas, he is not going to drop those. बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया उमर अमीन ने. मिड विकेट को पार नहीं कर सके. अच्छा कैच लिया. Down the wicket. Shazad can do that very well. Up and over. This time he got underneath it. 4 runs. Oh, ये शॉट, उम्दा शॉट. That should be out. That should be out. Yes, it is.